Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, I'll be starting with economy for the upcoming UPSC Civil Services examination. So I have referred to Mronal sir's notes to prepare this document. So primarily, I'll be following his approach itself. So we'll start with pillar 1A 1, that is money, barter to Bitcoin. So, first of all, we look at barter system and its disadvantages. So, barter system was introduced by Mesopotamian tribes, and it has the following challenges. So, disadvantages क्या हैं? A question may be asked on this subtopic. के disadvantages of barter system क्या हैं? So, often there is a lack of double coincidence of wants. This means that सी बाटर सिस्टम में क्या होता है, यू बेसिकली एक्सचेंज गुड्स, है ना, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स. ठीक है. सो इफ आई हैव राइस आई कैन एक्सचेंज इट फॉर से फॉर एग्जांपल आई कुड एक्सचेंज राइस फॉर सम फर्नीचर. ठीक है. However, the person whom I want to exchange my rice for, they might not be wanting rice. For example, if I want furniture and if I offer them rice, the person in front might not be wanting rice from me. ठीक है. So that is what double coincidence of wants means. कि मेरे को जो चाहिए वो सामने वाले को, मेरे पास जो भी है सामने वाले के पास और जो भी सामान है दोनों हमको एक दूसरे को चाहिए रहना चाहिए. ठीक है. So often there is a lack of double coincidence of wants. Then lack of common measure of value. ठीक है. So it is difficult to determine के कितना furniture comes for how much amount of rice. ठीक है. Next है difficulty in making standard deferred payments. So for example EMI वगैरह जो अभी we usually have in the present system, that is difficult in barter system. Then inefficiency in storing value. So for example, if we have rice, it may get bad, or perhaps it may get eaten up by some mice or something. So storing value will be quite difficult in case of, it is usually difficult in case of barter economies. Then high search and transaction costs. ठीक है. मतलब वही कि you'll have to search for a person to ensure that there is double coincidence of wants, and only then can a barter be carried out. So again, it is a very costly process, the entire thing. Then there's a lack of divisibility. So for example, I have furniture with me, I have a table with me, and I want to exchange it for something else. Then now this table is not fungible. Okay, so there's a lack of divisibility. It is not as if I can just dismantle this and sell pieces of the table to other people. ठीक है. तो there is a lack of divisibility. Then solution क्या है? Money overcame these limitations. So overall this is very theoretical. I don't think that a lot of questions may be asked, but still a conceptual question might be asked from this. Factual information कुछ नहीं है इसमें. Next है functions of money. So primary functions क्या क्या है? Money acts as a medium of exchange and measure of value. So ठीक है, medium of exchange because it is used to exchange, मतलब कि you use money to buy items, so it is a medium of exchange. Then it is a measure of value, as in if you want to purchase something, you measure the value of that commodity with the help of money. ठीक है. So if I want to purchase a table, I can measure the value of that table with the help of the cost of that table. Then है secondary functions क्या क्या है इसके? Standard of deferred payments. ठीक है. डेफर्ड पेमेंट्स वो EMI वगैरह के बारे में बात हो रही है. देन इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है. देन ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू ऑल्सो. सो इट कैन बी यूज बोथ फॉर स्टोरिंग वैल्यू एज वेल एज ट्रांसफरिंग. नेक्स्ट है कंटिंजेंट फंक्शंस क्या क्या है उसके? इट इज़ द बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम. ठीक है. लोन्स वगैरह में मनी प्लेज अ मेजर रोल. देन एम्प्लॉइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन.
ठीक है, तो जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्राइज, है ना? तो इन सबको एम्प्लॉय करने के लिए मनी इज़ अ मेजर, मतलब मनी इज़ द मेजर टूल फॉर एम्प्लॉइंग दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देन है क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वाया टैक्सेशन. ठीक है, सो मनी प्लेज अ मेजर रोल हियर ऑल्सो. So, वैसे तो आई डाउट इफ दे विल बी आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस, बट स्टिल यू शुड नो कि प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या है, मतलब कि सबसे बेसिक फंक्शन क्या है मनी का. मनी इज यूज टू बाय गुड्स, है ना? और ये जो गुड है इसका वैल्यू भी पता करने के लिए मनी हेल्प्स. सो दैट इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन. देन सेकेंडरी फंक्शन, उसके अलावा जो भी फंक्शंस है ना वो सेकेंडरी और कंटिंजेंट फंक्शंस में डाल देंगे. सेकेंडरी फंक्शन है कि हमें डेफर्ड पेमेंट्स करने देता है, स्टोर ऑफ वैल्यू के जैसे काम करता है, एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू के जैसे. ये वाला तो यू विल बी इजीली एबल टू रिमेंबर कि बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, गुड्स खरीदने और गुड्स का वैल्यू पता करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स कम्स अंडर सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शंस. ठीक है. So next we'll move on to the evolution of money. So there are the following types of money. We have commodity money, metallic money, paper or token or representative or fiat money. Then we have bank money or deposit money, and lastly we also have cryptocurrency. So we'll be looking at all of these one by one. First of all we'll be looking at commodity money. सो कमोडिटी मतलब कोई चीज़. ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है इसकी? आइटम्स विच हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, and if those items are used as money then that is known as a commodity money. So for example gold nuggets को अगर money के जैसे यूज़ कर रहे हैं, even gold coins have intrinsic value, है ना? वो metal का खुद का value है. So that is known as commodity money. Whereas token coins में क्या होता है? ऐसे ही कुछ भी, जैसे for example right now we have क्यूप्रो निकल के coins हैं. So they have very less intrinsic value. ठीक है, उनको बस एज अ टोकन यूज़ करते हैं. ठीक है. सो आइटम्स हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू एंड विच आर यूज्ड एज मनी, दे आर नोन एज कमोडिटी मनी. प्रॉब्लम्स विद दीज आर they are perishable, non-uniform, have purity issues and limited acceptance also. Next है metallic money. So stamped metal which are used for uniformity and trust. Historical examples of metallic money क्या क्या है? इंडो ग्रीक कॉइन्स, कुशाना, गुप्ता, दिल्ली सल्तनत, शेरशाह सूरी एंड अकबर, इन सब के टाइम के कॉइन्स. एंड गुप्ता कॉइन्स आर बाय फार द मोस्ट, they are the most artistic, they are considered to be the most artistic. So they are notable for their artistic depictions. Then we have metallic money, और metallic money में ही there are two categories. ठीक है. So first of all we have full bodied and the other one is token coins. full bodied coins क्या होते हैं? The intrinsic value of that metal, जिस चीज़ से coin बना है, that is generally more than or equal to the face value of that metal. So for example Guptas had gold coins there, है ना? तो gold coin में क्या रहता है? The metal itself has a very high intrinsic value, and usually जो कॉइन का वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है कॉइन का, जो कॉइन के ऊपर लिखा है, दैट इज जनरली इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द गोल्ड कॉइन, और द इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन दैट ऑफ देन द फेस वैल्यू. ठीक है. देन वी ऑल्सो हैव टोकन कॉइन्स. टोकन कॉइन्स में क्या होता है? द फेस वैल्यू इज ग्रेटर दैन द इंट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है. सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस विल बी द मॉडर्न कॉइन्स. ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था जैसे क्यूप्रो निकल के कॉइन्स बनते हैं आजकल. सो इट इज़ अ रिलेटिवली चीपर मेटल. ठीक है. एंड जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जैसे 5 रुपीज़ का कॉइन है या 20 रुपीज़ का कॉइन है, द वैल्यू ऑफ द मेटल विच इज़ यूज टू मेक दैट कॉइन इज वे लेसर दैन द फेस वैल्यू ऑफ दैट कॉइन. ठीक है. नेक्स्ट है डिबेसमेंट. डिबेसमेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग द मेटल कंटेंट इन अ कॉइन. ठीक है. सो इट इंडिकेट्स अ वीक रूल. तो ये
बेसिकली क्या होता है, अगर दिस डज नॉट हैपन राइट नाउ, पहले जो एम्परर्स वगैरह होते थे उनके टाइम पे होता था, दे यूज टू हैव गोल्ड कॉइन्स फॉर एग्जांपल, है ना, फुल बॉडीड कॉइन्स होते थे उनके उनके पास में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सपोज ये 1 रुपी का गोल्ड कॉइन है, 10 ग्राम का, मतलब ऐसे कुछ भी आप, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वंस देयर इकोनॉमी बिकम्स वीकर, वो लोग क्या करते हैं, सेम रुपी 1 का ही कॉइन 5 ग्राम गोल्ड का बनाने लग गए। ठीक है, दिस इज नोन एज डिबेसमेंट, दैट इज रिड्यूसिंग द मेटल कंटेंट ऑफ द कॉइन। ठीक है, फिर टोकन कॉइन्स का एक फेमस एग्जांपल है मेडिवल टाइम से, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से, दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। सो he is considered to be the first person who brought token coins. However, his experiment of to मतलब फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, आई एम नॉट श्योर ओवरऑल कौन होगा, बट ही इज द मोस्ट prominent example of having introduced token coins. He had introduced token coins, however, the experiment had failed and people refused to accept token coins as a currency. ठीक है, तो वहाँ पे वैसे उन लोगों ने माना नहीं कि ये नहीं हम लोग यूज़ करेंगे एज मनी। ठीक है, देन मॉडर्न कॉइन्स यूज क्यूप्रोनिकल टू प्रिवेंट मेल्टिंग। तो ये असली में क्या लिखा है कि क्यूप्रोनिकल क्यों क्यों यूज़ करते हैं, टू प्रिवेंट मेल्टिंग, मेल्ट क्यों करते हैं, प्रिवेंट क्यों करना चाह रहे हैं, बिकॉज देर वर रिपोर्ट्स अर्लियर कि जो हमारा 5 रुपी का कॉइन है ना, दैट यूज टू बी स्मगल्ड टू बांग्लादेश, और फिर बांग्लादेश में उसको मेल्ट करके दे यूज टू मेक रेजर ब्लेड्स और समथिंग, ऐसा कुछ पहले चल रहा था। सो दैट इज़ वाई the government started making cupronickel coins. So it is basically an alloy type कुछ रहेगा, so it won't melt that easily. ठीक है, तो ये सब काम नहीं होगा उससे। नेक्स्ट है कॉइनेज एक्ट 2011। सो अकॉर्डिंग टू कॉइनेज एक्ट 2011, मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स इज इलीगल। ठीक है, और कॉइनेज एक्ट का ईयर कैसे लर्न करेंगे हम लोग, 2011। सो दिस इज अ फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर। कॉइनेज और 2011, तो COI, यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस हैं, और इवन 2011 में भी दो वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, तो वैसे करके लर्न कर सकते हैं, कॉइन का 2 वर्टिकल लाइंस और 2011 का। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू। सो कॉइन्स विद इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जाम्पल्स क्या है, प्रेशियस मेटल कॉइन्स। सो इफ अ कॉइन हैज़ an intrinsic value, then the metal can be melted and reused. ठीक है, तो example is gold coins. Next है paper currency. Paper currency generally have no intrinsic value and paper has limited use. ठीक है, next है paper money और fiat money. So देखो, any money can be declared as a legal tender by the government. Conditions क्या है उसकी, it should have either a physical or a digital form for value measurement and it should be issued by a government or central bank. ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली डेफिनेशन किस चीज़ का दिया है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। फिएट मनी की डेफिनेशन दी है यहाँ पे। फिएट मनी इज एनी मनी विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ लीगल टेंडर बाय अ गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, सो एनी मनी विच इज़ इशूड by some government or a central bank and which has a physical or digital form, that will be known as fiat money. ठीक है, so according to the coinage act of 2011, government issues coins up to rupees 1000। ठीक है, ये ऐसे नॉर्मल फैक्ट दिया है, बस इसमें मेन चीज़ यही इम्पॉर्टेंट है
कि फिएट मनी होता क्या है. सो फिएट मनी इज एनी type of money which is issued by some government or central bank, and it has physical or digital form for value measurement. ठीक है. नेक्स्ट है कि कुछ भी फैक्ट्स दिए हैं कि कॉइनेज एक्ट, अंडर कॉइनेज एक्ट 2011 गवर्नमेंट कैन इशू कॉइन्स अप टू ₹1000. सो दिस में भी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन के मैक्सिमम अमाउंट कितना किसी भी कॉइन का मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है. सो इट इज़ ₹1000. ठीक है. और फिर क्या दिया है, वो ₹20 का जो कॉइन है, इट इज़ अ 12 साइडेड पॉलीगॉन. आपने देखा भी हुआ होगा, है ना. ₹1 नोट इज साइंड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड इट सेज नो. आई अच्छा, नो नहीं आएगा. देखो, जो बाकी के जो नोट्स होते हैं ना, द वंस विच आर issued by the RBI, it has the governor's signature and it has the clause कि I promise to pay the bearer of this note. ऐसे करके दिया रहता है पूरा, वहाँ पे कोट्स में दिया रहता है ना. However, जो ₹1 का जो नोट है, it is issued by the government, it is signed by the finance secretary and it has no such clause. I promise to pay clause है ही नहीं उसमें. ठीक है. तो ये आप याद रखना, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इट मे बी आस्क्ड. इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, अब बस ऐसे ही लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यूजुअली डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मैं sarcastically ऐसे कुछ भी बना रही हूँ, डज नॉट टेक. ठीक है. सो देयरफॉर नो प्रॉमिस हैज़ बीन मेड टू पे. whereas RBI, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बट स्टिल थोड़ा सा अलग है उनसे, है ना. सो दैट इज़ वाई दे हैव अ प्रॉपर क्लॉज विच सेज दैट आई प्रॉमिस टू पे द बियरर्स दिस अमाउंट. ठीक है. नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट लीगल टेंडर. सो एनी फिएट मनी विच इज़ लीगली वैलिड फॉर ऑल डेट्स एंड ट्रांजैक्शंस, दैट इज़ नोन एज लीगल टेंडर. ठीक है. सो द इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर दिस इज, इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस में यही है, लीगली वैलिड है. ठीक है. एंड कंडीशंस क्या है टू बी अ लीगल टेंडर, इट शुड बी अ फिएट मनी एंड इट शुड बी लीगली एक्सेप्टेड फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस. ठीक है. तो दोनों में फ़र्क क्या है. फिएट मनी इज एनीथिंग विच इज इशूड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी लाइक अ सेंट्रल बैंक और द गवर्नमेंट, वेयर एज लीगल टेंडर वो वाला फिएट मनी है which has been approved to be legally valid for all debts and transactions. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने कुछ बोला है कि ये लीगली वैलिड है सारे ट्रांजैक्शंस के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे लीगल टेंडर. और गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ इशू करी है उसको हम लोग फिएट मनी बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट लीगल टेंडर्स क्लासिफिकेशन टेबल. In this table, first of all, we have a column for items, then physical coins, notes, or digital, whether the given currency is a physical coin or note or a digital currency. Then, has it been issued by the central bank or central government or a king or queen, जो भी है, कोई central authority के द्वारा, whether it is issued. Then we have whether it is fiat money or not, and फिर legally valid in India है कि नहीं. So if it will be a fiat money if it satisfies the conditions of column A as well as column B. ठीक है. Then है whether it is legally valid in India as per the Coinage Act or some RBI Act. Coinage Act कौन से ईयर का है, 2011, and RBI Act 1935. Then whether it is a legal tender in India or not. So if it satisfies the conditions of column C and D, then it will be called a legal tender.
ठीक है। तो फर्स्ट we'll be looking at Indian rupee coins, notes and central bank digital currency. So it is in physical form as well as a digital form, ये digital form में है ना। उसके अलावा it has been issued by a, हाँ, by the central government and RBI also, है ना। और फिर है fiat money, therefore since A and B are correct, therefore it will be a fiat money as well। फिर legally valid in India है as per Coinage Act 2011, then since C and D are also satisfying, therefore it will be a legal tender। Next is demonetized notes of 500 and 1000 rupees. So they are in a physical form. Then they have been issued by this RBI as well. So both will be correct here. So it will be a fiat money. Are they legally valid in India? No, because Cessation of Banknotes Liability Act है ना 2017 का, under that the legal validity of rupees 500 and 1000 notes जो demonetize हो गए, that was removed। ठीक है, so this will be wrong। then legal tender in India वो भी नहीं रहेंगे because C and D both are not satisfying, therefore मतलब C is satisfying the condition, however D is not, therefore it won't be a legal tender। Next है dollars, yuan, yen, euro, etc. foreign currency। They are in a physical form, that is correct। फिर they are issued by some central bank, ठीक है। so respective countries के central banks ने issue किया है, so this is also correct। then fiat money, yes they will be fiat money because both A and B are being satisfied। then are they legally valid in India as per Coinage Act? No, ठीक है, since it is a foreign currency। then legal tender in India, so since D is not satisfying this, therefore it won't be a legal tender as well। then government securities and treasury bills, so are they physical, are they present? हाँ they are। देखो, फिजिकल कॉइन या करेंसी के फॉर्मेट में नहीं है वो, दे आर बेसिकली एन अग्रीमेंट, सो दिस वोंट बी satisfying द कंडीशन। देन बी क्या है, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और हाँ दिस इज करेक्ट, दे आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। देन फिएट मनी है नहीं, बिकॉज द कंडीशन ए हैज़ नॉट बीन सेटिस्फाइड। फिर आर दे लीगली वैलिड इन इंडिया एज पर द कॉइनेज एक्ट? अगेन नो, ठीक है। देन लीगल टेंडर भी फिर नहीं बनेंगे ये लोग, है ना। देन है शेयर्स, बॉन्ड्स, डीडी, चेक, एटीएम कार्ड्स एक्सेट्रा, सो दे आर नॉट इन अ फॉर्म ऑफ फिजिकल कॉइन और नोट, ठीक है। डिजिटल सॉरी करेंसी नहीं है कोई भी ये, दे आर बेसिकली even though they have a physical form but they are not in the form of coins or currency, so this won't be satisfied। then they are issued by central bank, हाँ this is also not satisfying it because these are privately issued, for example banks वगैरह issue करते हैं, ठीक है। so they are not being issued by some central bank, RBI is not issuing them, neither is the government issuing them, so they are not fiat money since A and B are not satisfied। then are they legally valid in India as per Coinage Act? Again no, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, लीगल टेंडर इन इंडिया? अगेन इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। नेक्स्ट है किराना कॉइन, कैसीनो कॉइन, फिल्म स्टार नोट, सो दीज आर जस्ट ऐसे फालतू करेंसी होता है ये, दिस इज नॉट of any use, so they are not a physical coin, neither issued by any central authority, therefore not a fiat money, legally valid भी नहीं है और legal tender भी नहीं है। then है मार्शल आइलैंड ने जो पेट्रो कॉइन इशू करा है वेनेजुएला में, ये पहले हुआ था, अभी तो आई थिंक देयर हैव बीन सम चेंजेस। तो मार्शल आइलैंड का सोवरेन करके एक उन्होंने डिजिटल करेंसी बनाया है, एंड वेनेजुएला का पेट्रो कॉइन, so they are in a digital format, so this will be correct। they are issued by the government, this is also correct, therefore this will be fiat money, however they won't be legally valid in India because it does not come under any act, coinage act या RBI act किसी के भी अंडर नहीं आता, therefore it is not legally valid।
thus it is not a legal tender in India. फिर है bitcoins. Bitcoins are digital in format, therefore this will be satisfied. Where they are issued by a central, so they are not, bitcoins are not issued by any central authority. ठीक है, that is the distinctive characteristic of bitcoin, कि it has not been issued by any central authority. ठीक है, फिर है fiat money तो नहीं होगा, because option the B condition has not been satisfied. Then D क्या है, are they legally valid in India? So no, they are not, they do not come under any act. नेक्स्ट है लीगल टेंडर है, नहीं वो भी नहीं है. ठीक है, so there are some caveats given here. Bitcoin is not a fiat money, yet it is a legal tender in El Salvador. So El Salvador करके there is a country and they have recognized Bitcoin as a legal tender even though it is not a fiat money. So this is an important exception that you should remember. El Salvador, इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, सैल्वाडोर, तो बिटकॉइन को एल सैल्वाडोर में जाके सैल्वेशन मिली, इट वाज रिकग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम देयर. ठीक है, बस ये लर्न करने के लिए मैंने दिया है. देन कमेमोरेटिव कॉइन्स, फिएट, दे आर फिएट मनी यस बट नॉट लीगल टेंडर्स अनलेस नोटिफाइड बाय द आरबीआई और गवर्नमेंट. ठीक है, सो जो कमेमोरेटिव कॉइन्स हैं वो आरबीआई वगैरह इशू करते हैं. दे जनरली इशू देम ऑन सर्टन मेजर ओकेजन्स. फॉर एग्जांपल एक किया था जैसे 75th फाउंडेशन डे ऑफ ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के 75th फाउंडेशन डे पे करा था उन्होंने. हाउएवर वो भी 75 रुपीज़ का नोट किया था उन्होंने, नोट नहीं मतलब कॉइन. They had issued as a commemorative coin. However, it won't be a legal tender. ठीक है, this cannot be used for transactions until unless it has been notified by the RBI or government. Next, we'll look at the next topic. This is legal tender, limited versus unlimited legal tender. So, limited legal tender का रहता है कि its acceptance can be refused beyond a certain limit. ठीक है, for example, under coinage act, coins जो होते हैं हमारे, they are generally limited legal tender, therefore only limited amounts can be accepted. So जैसे 50 पैसा coin है, it has limits. ठीक है, तो around 1000 रुपीज़ का शायद लिमिट होता है कि 1000 रुपीज़, आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक. हाँ ठीक है, 10 रुपीज़ है इसका लिमिट. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन 50 पैसा आप कितने दे सकते हैं, 10 रुपीज़ तक, मतलब टोटल ओनली कितना हो जाएगा, 50 पैसा 20 कॉइन्स मैक्सिमम यू कैन गिव इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन. ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है, आप देने को तो कितना भी दे सकते हो. हाउ एवर द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू हु इज एक्सेप्टिंग दैट मनी, दे हैव अ राइट टू से नो आफ्टर 20 कॉइन्स. ठीक है, कि आप नहीं, आप मेरे को करेंसी में दीजिए या गिव बेटर बिगर कॉइन्स. ठीक है, सो अप टिल ₹10 they can accept 50 paisa coins. After that they have the right to say no, so it won't be a legal tender after that. ठीक है, for a single transaction. ठीक है,
नेक्स्ट है अनलिमिटेड लीगल टेंडर. सो देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ दीज. फॉर एग्जाम्पल जो पेपर करेंसी है हमारी, पेपर नोट्स, they are considered to be unlimited legal tender under RBI Act 1934. Next, we will be looking at the next topic, RBI's money app to help blind identify currency notes. So, RBI का जो money app है, January 2020 में this had come into being. Its primary purpose was to identify denomination of Indian currency notes. ठीक है, तो basically जो persons with disability है उनके लिए this was launched. बेसिकली हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग कि कौन सा नोट है ये. ठीक है, सो इट यूजेस अ मोबाइल कैमरा टू स्कैन द नोट्स इवन इफ इट इज़ हाफ फोल्डेड, and it provides an audio notification in either Hindi or English. So it can work offline as well, and it also has vibration alerts for users who are both blind and deaf. ठीक है, however it has a major limitation that it cannot detect counterfeit notes. ठीक है, सो इसमें प्राइमरली बस ये इंपॉर्टेंट है, मनी ऐप के बारे में पता होना चाहिए एंड यू शुड बी नोइंग कि आरबीआई का ही ऐप है ये. ठीक है, ऐसे इन द एग्जामिनेशन दे माइट गिव यू ऑप्शंस कि एनपीसीआई का है, कि आरबीआई का है, कि हैज़ इट बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, सच ऑप्शंस में बी गिवन टू यू, और हैज़ इट बीन इशूड बाय एसबीआई. सो यू शुड बी नोइंग प्रॉपरली कि मनी ऐप जो है दैट हैज़ बीन इशूड बाय आरबीआई. सो हाउ शुड यू रिमेंबर दिस? देखो, इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफाइंग करेंसी नोट्स, है ना, एंड करेंसी नोट्स कौन इशू करता है? इशूड बाय आरबीआई. देयरफॉर दिस ऐप हैज़ ऑल्सो बीन इशूड बाय आरबीआई इटसेल्फ. ठीक है, वैसे करके यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर दिस. सो नेक्स्ट वी विल गो टू एक प्रॉमिस. करेंसी नोट्स पे देयर इज़ अ प्रॉमिस मेड, मतलब ऐसे एक स्टेटमेंट दिया रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ दिस नोट समथिंग, ऐसे करके कुछ लिखा रहता है ना. इट इज़ प्राइमरली इन करेंसी नोट्स. सो वील बी स्टडिंग व्हाट दैट मीन्स एग्जैक्टली. So colonial era में the promise meant that the promise to pay meant that the currency could be exchanged for gold or silver coins of equal value. For example, आपके पास में you have a $1 और उस टाइम पे the exchange rate was also similar, मतलब $1 was equal to ₹1, ऐसा कुछ भी होता था at some point of time. So if you have one note of that, you will get an equivalent amount of either gold or silver if you present the same to the central bank. ठीक है, सो जैसे $1 के लिए 14 grams ऑफ गोल्ड यू यूज टू गेट. सिमिलरली £1 के लिए 73 grams of gold. So that was in the colonial era. So the currency could be exchanged for either gold or this thing, silver coins. Next है modern era. Modern era में the currency notes are no longer backed by gold or silver. ठीक है, so they can be exchanged for other banknotes or coins of equal face value. तो जैसे 20 रुपीज़ का नोट मिल दिया, if I give it to the bank, they are they can exchange 2 10 रुपीज़ notes for that with me. ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि दे विल बी गिविंग मी गोल्ड worth ₹20 to me. ठीक है, so for example ₹2000 can be exchanged for ₹4 500 notes or 20 100 notes. बस यही करेंगे, equivalent amount of gold या silver नहीं देंगे. They are no longer backed by gold or silver. So key points क्या है? The currency notes are not inflation adjusted and are no longer tied to the value of precious metals. ठीक है, and they are essentially a zero interest anonymous bearer bond or promissory note. So again, this is very important. You should be knowing that currency notes are not inflation adjusted. Inflation adjusted का मतलब यही होता है कि
So what really happens in inflation होने पे the value of money goes down. If inflation is increasing, the value of money goes down. For example, पहले अगर ₹10 का 50 ग्राम राइस आ जाता था, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो अभी ₹10 का ओनली 40 ग्राम राइस आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, हाउएवर करेंसी नोट्स आर नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड. ऐसा नहीं है कि आपका इन्फ्लेशन हो रहा है सो ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम ₹12.5. ऐसे नहीं होगा. जो करेंसी नोट का जो भी वैल्यू है दैट विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, सो दे आर नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड एंड दे आर नो लॉन्गर टाइड टू द वैल्यू ऑफ प्रेशियस मेटल्स. वो हमने पहले पढ़ लिया. दे आर नॉट बीइंग बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर. देन they are essentially a zero interest anonymous bearer bond or a promissory note. This entire phrase is quite important. ठीक है, this is a phrase used to signify currency notes. तो इनको क्या होते हैं, वो बेसिकली ऑफिशियल टर्म्स में या लीगल टर्म्स में currency notes are basically zero interest since they'll be giving no interest. Anonymous bearer bonds, that means कोई भी anonymous person who is holding that currency note will be entitled to receive that मतलब they will be entitled to that much money. ठीक है, तो anonymous person can be holding it. कोई भी specific name नहीं दिया होता है currency notes पे. और promissory note bearer bond है या promissory note है. ठीक है, so zero interest anonymous bearer bond और promissory note. This is an important phrase which you must remember. So I'll be using a blue ink to mark the important facts which you should be revising. ठीक है, other than that red ink will be used to help you explain stuff. Next देख लेते हैं. Currency note is not a promissory note. देखो, is currency note a promissory note? ये डाउट है. So since I have taken this from Ronald sir's notes, so उनमें उसमें ऐसे explain किया हुआ है, so I have kept the same format. So as per academic books, a currency note has features of a promissory note. However, as per the law, जो negotiable instruments act है उसके अंदर it is not a promissory note. ठीक है, so this is a very important fact, you should be knowing this. कि ये वाला portion is quite important, that as per the negotiable instruments act, currency notes are not promissory notes. ठीक है, सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का आप ईयर याद रख लेना, 1881. सो बेसिकली द जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है ना, इट इज़ एन एक्ट, वो इट इज़ रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, रेगुलेटिंग डॉक्यूमेंट्स. इट रेगुलेट्स डॉक्यूमेंट्स that guarantee payments ठीक है, तो बेसिकली
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज डॉक्यूमेंट्स विच गारंटी पेमेंट्स। तो करेंसी से उसको हम लोग ये वोंट बी कंफ्यूज, डू नॉट कंफ्यूज दैट विद करेंसी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बैंक्स वगैरह इशू करते हैं, जैसे चेक बुक इशू करते हैं बैंक। देन यू ऑल्सो हैव बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स विच गारंटी पेमेंट दे कम अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू रेगुलेट दीज, द एक्ट विच इज इन प्ले इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881। ठीक है, इसको लर्न करना पड़ेगा हमको, एटलीस्ट द ईयर वी शुड बी रिमेम्बरिंग। तो कैसे लर्न करेंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि चेक वगैरह, है ना। सो अगर हमको 88 रुपीज़ का पेमेंट करना है किसी को, या 81 रुपीज़ का पेमेंट करना है, या रुपीज़ 18, है ना, ऐसी चीज़ें कोई पेमेंट करनी है अगर हम लोगों को, देन वी कैन नॉट बी यूजिंग करेंसी नोट्स। ये मैं बस एक निमोनिक टाइप बता रही हूँ आपको। इस सब के लिए करेंसी नोट्स कैन नॉट बी यूज्ड सिंस इस डिनोमिनेशन का आता नहीं है ना। करेंसी नोट्स या कॉइन्स नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, इंस्टेड वील बी यूजिंग चेक्स। ठीक है, ये बस एक लर्निंग एड दिया है जो ब्लू इंक से दिया है कि 1881 ईयर लर्न करने के लिए ऐसे कर लो कि 88 रुपीज़ या 81 रुपीज़, इन सब का पेमेंट हम लोग, we generally cannot do not make it with currency but rather use negotiable instruments like checks, डिमांड ड्राफ्ट, ये इससे करते हैं ऐसा ऑड नंबर का पेमेंट। ठीक है, फिर है डिमोनेटाइजेशन ऑफ फिएट मनी। ठीक है, तो ये यू माइट बी नोइंग 2016 में हुआ था डिमोनेटाइजेशन। देयर वाज अ लॉट ऑफ हुलाबुलू अराउंड दैट इवेंट। तो कब कब हो चुका है? देर 3 टाइम हो चुका है डिमोनेटाइजेशन अभी तक। फर्स्ट ऑफ ऑल 1946 में हुआ था एक बार, देन 1978 में, एंड नाउ 2016। ठीक है, सो यू शुड बी रिमेम्बरिंग दीज ईयर्स एज वेल, 1946, 1978 एंड 2016। तो इसको ईयर्स कैसे लर्न करेंगे? 2016 तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा, है ना। उसके बाद 1978 को लर्न करने के लिए लिंक इट विद सर्टन इवेंट एट ऑफ दैट टाइम। तो 1975-76 वो एमरजेंसी पीरियड चल रहा था, है ना। तो एमरजेंसी के बाद में दे डीमोनेटाइज्ड द नोट्स। आफ्टर एमरजेंसी जनता पार्टी गवर्नमेंट केम अप एंड दे डीमोनेटाइज्ड द नोट्स। ठीक है, वैसे लर्न कर लो। और फिर 1946 एंड ईयर बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, वैसे लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है इसमें? हाँ, demonetization का definition we should read. It refers to the removal of legal tender status of currency notes. ठीक है, तो they usually come up with a law. For example, 2016 में ये वाला law आया था, Specified Banknotes Cessation of Liabilities Act of 2017. So under this act, they basically removed the status of currency notes as a legal tender. ठीक है, तो बस इतना ही करते हैं उसमें, रिमूवल ऑफ लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ करेंसी नोट्स।
नेक्स्ट है डेट क्या थी, November 8 2016। फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैड बैंड ₹500 एंड ₹1000 नोट्स महात्मा गांधी सीरीज के। ठीक है, सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने करा था ये। सो दे माइट यूज सर्टन, मतलब अगर देना हुआ तो क्वेश्चन में ऐसे दे देंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने किया था कि कौन सा, मतलब तीन चार ऑप्शन दे देंगे। यू शुड बी नोइंग कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वाज द वन विच हैड कैरिड आउट डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, सो मनी से रिलेटेड है तो इकोनॉमिक अफेयर्स मतलब इकोनॉमी में जो भी चीज़ें हो रही उससे रिलेटेड है, तो डीमोनेटाइजेशन वैसे लिंक कर लो आप। नेक्स्ट है लीगल फ्रेमवर्क, क्या था इसका, तो वो एज आई सेड स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज एक्ट ऑफ 2017 that was brought in order to remove its status as a legal tender. So उसमें बस यही बोला गया था कि the RBI will no longer be obligated to honor the banned notes। ठीक है, restrictions क्या है, banned notes cannot be kept except for research, न्यूमिस्मैटिक्स और म्यूजियम के पर्पसेस के लिए, एंड दैट टू ओनली इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट। ठीक है, एंड फिर ये हम लोग विल रीड अबाउट दिस लेटर। तो बस इतना ही है इसमें डीमोनेटाइजेशन ऑफ फिएट मनी। देन हाँ, अभी रिसेंटली यू मे हैव हर्ड न्यूज़ के ₹2000 नोट हैज़ बीन it has been withdrawn। So अभी ये this is different from demonetization, do not confuse this with demonetization। जो ₹2000 का जो नोट विड्रॉ करा है ना, it still continues to be a legal tender, however the amount of the ₹2000 currency it has been reduced with the general public। ठीक है, so it is a temporary measure for currency shortage। ₹2000 notes were introduced temporarily to address the shortage of currency in circulation। Since now there is an adequate availability of other denominations, therefore it is being withdrawn। So और रीज़न क्या है, मतलब दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू शुड बी नोइंग कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन। सो लो यूजेज हो रहा था इसका, 2000 का इतना ट्रांजैक्शन नहीं होता है, एवरीडे ट्रांजैक्शन। एंड मोर ओवर RBI की एक क्लीन नोट पॉलिसी होती है, सो इट generally ensures that good quality banknotes are available to the public। ठीक है, so that is why they generally क्या करते हैं, they keep removing certain amount, withdrawing certain amount of banknotes from the from currency circulation, because कोई भी जो soiled notes होते हैं, खराब हो जाते हैं, they keep removing those from currency circulation। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए RBI का एक क्लीन नोट पॉलिसी होती है। देन द लाइफ स्पैन ऑफ ₹2000 notes, the paper used for the ₹2000 notes has a lifespan of around 4 to 5 years। So since most of them were printed in 2016-17, therefore their quality may begin to deteriorate by 2022-2023, that is why they were removed। So this is not very important। ठीक है, no mention of black money or corruption। The RBI press release does not mention fighting black money, corruption or fake currency। So basically उन्होंने mention तो नहीं किया, but this could also have been a reason। देखो, जो ₹2000 का नोट है, जनरल एवरीडे ट्रांजैक्शंस में तो it is not commonly used, है ना, not used in everyday transactions। However इसको स्टोरेज के लिए काफ़ी लोग, there were reports that it is being used to store black money। जो ऐसे आपने देखा होगा ना टीवी पे के बेड में जैसे मैट्रेस के अंदर मिलते हैं पैसे लोगों के, है ना, तो वो सब करने के लिए दिस वाज यूज्ड क्वाइट कॉमनली। दैट इज़ व्हाई दैट मे हैव बीन वन ऑफ द रीजंस फॉर रिमूविंग दिस फ्रॉम द सर्कुलेशन। ठीक है, तो जैसे ब्लैक मनी जमा करके रखने के लिए दिस वाज बीइंग यूज्ड ₹2000 notes। So that could have been a reason, however this was not an
official reason which was given. Apart from this, there could have been another reason कि जो 2000 रुपीज़ का नोट है उसको फेक करेंसी रैकेट में काफ़ी ज़्यादा पकड़ा जा रहा था. दैट कुड ऑल्सो हैव बीन अ रीज़न फॉर रिमूविंग दिस. ठीक है. हाउएवर दीज आर नॉट ऑफिशियल रीजंस. ठीक है. तो फेक करेंसी काफ़ी बनते जा रही थी इसकी. ऐसे देयर वर सर्टेन रिपोर्ट्स बट नो ऑफिशियल confirmation of the same. ठीक है. Now we'll be looking at bank money और deposit money. So basically पेपर ऑर्डर्स क्या होते हैं उसको देख लेते हैं. दे आर बेसिकली रेफर टू चेक और डिमांड ड्राफ्ट्स, है ना. तो अभी वी हैड जस्ट रेड अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881. उसके अंडर आते हैं चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड अदर सच डॉक्यूमेंट्स विच गारंटी अ पेमेंट इन फ्यूचर. ठीक है. और किन्होंने who had brought this? It was Viceroy Ripon who had brought the Negotiable Instruments Act. ठीक है. So it was under him that this act was enacted, and primary objective of this act was to prevent check dishonor or forgery. ठीक है. तो इसको हम लर्न कैसे करेंगे? वाइसरॉय रिपन उनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से कनेक्ट करना है. तो हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या क्या आते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ये सब चीज़ें, है ना. कैश एक्सचेंज बिल, ये सब चीज़ें आती हैं उसमें. तो जो चेक होता है हमारा चेक बुक के अंदर, उसको हम लोग रिप करके देते हैं ना, ऐसे फाड़ के देते हैं. अगर किसी को चेक देना है यहाँ पे, यहाँ से फाड़ के देते हैं, तो रिप करके देते हैं. ठीक है. सो उससे रिपन आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको. ठीक है. दिस इज़ जस्ट अ लर्निंग कनेक्शन फॉर योर बेनिफिट. फिर नेक्स्ट देख लेते हैं चेक्स एंड की टर्म्स ऑफ रिगार्डिंग अ चेक. So first of all, there are three parties when it comes to a check. There's a drawer, then we have a drawee and a payee also. So drawer is the one who draws the check. ठीक है. He is the one जिसके पैसे कट रहे हैं. ठीक है. तो इनको सेंडर भी बोल सकते हैं हम लोग. देन ड्रॉई रहेगा बैंक, जिस बैंक से उनका उनका अकाउंट जिस भी बैंक में, दैट विल बी द ड्रॉई. ठीक है. एंड पेई कौन रहेगा? रिसिपिएंट. ठीक है. पेई इज द पर्सन हु फॉर whom the check has been drawn. इनको मिल गया चेक. नाउ ही विल गो टू द बैंक एंड ड्रॉ मनी फ्रॉम इट. ठीक है. तो ये तीन लोग रहते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई. देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक एज वेल. So we have a stale check. Stale check is the one which has not been withdrawn in 3 months. So this is important. 3 महीने से जिस भी चेक को विड्रॉ नहीं करा है, that becomes a stale check. Then post dated check. So post dated check is generally payable only after a certain date. तो उसमें जो चेक में डेट डली हुई रहेगी, सो फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ 16 मार्च, तो उसमें रहेगा 31 मार्च की डेट डली रहेगी, ऐसे बाद की डेट डली रहेगी. सो यू कैन नॉट गो इन बिटवीन टू ड्रॉ द चेक. ठीक है. 31 मार्च के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं उस चेक से मनी. फिर है एंटी डेटेड चेक. So it is dated earlier than the issue date. So for example, it is issued today 16 मार्च को, but it will be dated earlier, जैसे 12 मार्च को डेटेड है वो. ठीक है. सो ऐसे उसको एंटी डेटेड चेक बोलेंगे. देन वी हैव ओपन और बियरर चेक. सो एन ओपन और बियरर चेक हैज़ नो क्रॉसिंग. यहाँ पे ऐसे क्रॉसिंग लगा रहता है ना, अगर आपने देखा होगा. So an open check is the one which has no crossing, therefore anyone can encash it. तो क्रॉसिंग के बाद यहाँ लिखा रहता है कि
वो अकाउंट पे ही ओनली ऐसे करके कई लोगों ने लिखा रहता है, तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं होता। इसमें ओनली एनी वन हु possesses द चेक कैन विड्रॉ इट। ठीक है, तो वो है। फिर बैंक कोड्स रहते हैं, आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड। IFSC code is basically an 11 digit alphanumeric code to identify bank branches. It is like a pin code. और MICR code basically 9 character code रहता है for automated check clearance. So both of these are odd numbers, so it will be easy to remember. ठीक है, MICR code is regarding checks. चेक में कम अमाउंट होता है तो 9 डिजिट ऐसे लर्न कर लो। और IFSC इज रिगार्डिंग बैंक्स, बैंक्स में काफ़ी अमाउंट होती है तो 11 डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट now we'll be looking at demand drafts and overdraft facility. Overdraft basically उसका definition क्या है? It allows withdrawal despite insufficient balance. तो it refers to the money which is withdrawn from bank over and above our own balance. तो जैसे अगर हमारा 0 रुपीज़ बैलेंस हो जाए ना, सो उसके बाद में we withdraw money that will come into overdraft। ठीक है, तो वो माइनस में चले जाता है ना। सो ये इट इज़ अ टाइप ऑफ अ लोन। ओवरड्राफ्ट इज़ अ टाइप ऑफ अ लोन। ठीक है, सो जैसे पर्पस इज मेनली, इट इज़ मेनली फॉर शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड एग्जाम्पल क्या है? प्राइम मिनिस्टर जनधन अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 रुपीज़ तक की है। सो यू कैन गेट अ लोन ऑफ अबाउट 10,000 रुपीज़ इफेक्टिवली वाया दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, एंड डिफरेंस क्या है ओवरड्राफ्ट और लोन में? देयर इज़ अ डिफरेंस। उसमें क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है, इट इज़ यूजली शॉर्ट टर्म एंड फ्लेक्सिबल बोरोइंग के लिए है, एंड इट इज़ जनरली फॉर वेरी स्मॉल सम्स। जैसे इसमें दिया ही है 10,000 रुपीज़ फॉर जनधन अकाउंट्स, तो स्मॉल अमाउंट्स। वेर एज लोन दे आर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस एंड हायर वैल्यू बोरिंग। ठीक है, लार्जर अमाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट CTS। CTS स्टैंड्स फॉर फास्टर सेटलमेंट इन जस्ट, मतलब CTS का फुल फॉर्म होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है, एंड इट इंश्योर्स फास्टर सेटलमेंट ऑफ चेक्स। सो यहाँ पे देयर इज सम मिसप्रिंट ओवर हियर। दिस इज नॉट चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, इट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है, सो पहले क्या होता था? पहले बिफोर द चेक ट्रंकेशन सिस्टम हैड कम इनटू बीइंग, अर्लियर CTS क्लियरेंस यूज्ड टू टेक अबाउट 1 to 2 वर्किंग डेज। वैसे तो CTS से पहले चेक, वेट अ सेकेंड, लेट मी टेल यू। देखो, चेक ट्रंकेशन सिस्टम है ना, दिस हैज़ बीन इन प्लेस सिंस 2008 और सम, मतलब बहुत पुराना ही है ये। एंड बेसिकली इट रेफर्स टू हाउ चेक्स गेट पास्ड इन अ बैंक ब्रांच। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वंस दे रिसीव अ चेक, दे विल बी सेंडिंग दैट चेक टू दी अदर बैंक जहाँ से ड्रॉ करा है इसको, अमाउंट को। फिर वो वाला जो बैंक ब्रांच है, दे विल अप्रूव कि हाँ वी हैव एन अकाउंट एंड इट हैज़ सफिशिएंट बैलेंस। ऐसे कर करके बहुत टाइम हो जाता था। ठीक है, तो अभी देयर इज़ अ फास्टर सेटलमेंट विच हैज़ बीन ब्रॉट इन 2024। इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दैट प्रोसेस विल बी डिजिटल। ठीक है, तो पिक्चर खींच के स्कैंड चेक रहेगा, दैट विल बी सेंट टू द होम ब्रांच एंड ऐसे करके इट विल फंक्शन। सो बिफोर CTS क्लियरेंस यूज्ड टू टेक अराउंड 1 to 2 वर्किंग डेज, एंड जो बैंक को जो स्कैंड चेक्स मिलते थे, दे यूज टू प्रोसेस देम इन बैचेस। whereas after the CTS system has been put in place,
द सेटलमेंट विल बी डन विद इन अ फ्यू आवर्स. ठीक है, एंड इसको T+1 सेटलमेंट साइकिल भी बोलते हैं या ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, सो अर्लियर चेक क्लियरेंस यूज टू टेक अराउंड 2 days. अभी इट इज लाइक अ फ्यू आवर्स ओनली. नेक्स्ट वी लुक एट इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स और डिजिटल पेमेंट्स. तो under the Payment and Settlement System Act of 2007, RBI regulates card and e-payment services. ठीक है, again this is very important, the act as well as the year. इसमें P looks like 7, a bit like 7 है ना, उल्टा उल्टा P और 7 सिमिलर दिखते हैं, so you can link that to 2007 and remember this. ठीक है, so Sky electronic orders, digital payments में we'll be looking at certain systems which are present in this. First of all, we have core banking solutions. Basically, core banking solution is a banking software which has a web platform. ठीक है, ये basically branchless banking करने में it helps. तो इसमें क्या होता है, यू कैन गो टू डिफरेंट ब्रांचेस. जैसे कि ऐसा नहीं है कि होम ब्रांच, SBI की होम ब्रांच जो मैं जहाँ पे मैंने अकाउंट खोला था वहीं पे जाके मेरा काम होगा, ऐसा नहीं रहेगा. यू कैन गो टू एनी SBI ब्रांच एंड गेट योर वर्क डन. ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द इंटायर अकाउंट मतलब पूरा ही सिस्टम जो है इट हैज़ बीन मूव्ड ऑनलाइन. ऑनलाइन दे हैव वेरियस सॉफ्टवेयर्स लाइक Finacle, Ban CS और Ecobaid तो RBI का है. So these softwares ensure interoperability between various branches. ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया. कोर बैंकिंग सोल्यूशन बोलते हैं इसको. ब्रांचलेस बैंकिंग रहता है इसमें एंड सेंट्रलाइज्ड डेटा. तो ये ऑनलाइन रहेगा सब कुछ, पूरा डेटा विल बी ऑनलाइन रिगार्डिंग द अकाउंट ऑफ अ पर्सन एंड जो भी है. सो सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट. ठीक है, सो ब्रांचलेस बैंकिंग विल बी इंश्योर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक है, और कोर बैंकिंग सोल्यूशन RBI का क्या है, ये दिस में बी आस्क्ड. तो ई कुबेर है. सो इफ़ यू वांट टू इफ अ बैंक वांट्स टू डील विद द RBI, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो, they have to send money or something like that, they will be doing that via the e-Kuber platform. ठीक है, next we will be looking at NEFT, RTGS and IMPS. so इनका फुल फॉर्म क्या है. सबसे पहले RTGS stands for real time gross settlement, then NEFT stands for National Electronic Funds Transfer, IMPS stands for immediate payment immediate money immediate payment service ही है. ठीक है, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम है. हाँ नहीं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस. ठीक है, नाउ इशूअर कौन है इन तीनों का. तो सबसे पहले RTGS का इशूअर इज RBI इटसेल्फ. ठीक है, देन फॉर नेफ्ट अगेन इट इज RBI, whereas for IMPS it is NPCIL, that is नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों को लगता है कि सारे ही NPCI के अंडर आते होंगे, बट नहीं. RTGS एंड नेफ्ट आर RBI कंट्रोल्ड, whereas IMPS इज NPCI बैंक्ड. ठीक है, और आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो. देखो, RTGS और नेफ्ट करने के लिए वी जनरली गो टू बैंक्स, whereas IMPS तो immediate payment system है, it can be done via our mobiles itself. जैसे फ़ोन पे वगैरह also offer IMPS की फैसिलिटी. देन वी हैव ट्रांसफ़र अमाउंट कितना के लिमिट्स दिए हैं यहाँ पे. सो फॉर RTGS इज़ प्राइमरली फॉर बिग पेमेंट्स.
ठीक है, तो मिनिमम 2 लाख रुपीज़ से 2000 करोड़ रुपीज़ तक यू यूज़ RTGS. Whereas for NEFT is generally for lower amounts. ठीक है, तो up to 10 लाख रुपीज़ you use NEFT. और immediate पेमेंट सर्विस वही ₹1 to ₹5 लाख, तो 5 लाख रुपीज़ उसका लिमिट है, अपर लिमिट। ठीक है, सो दीज फिगर्स आर क्वाइट इम्पोर्टेंट। इसको आप लर्न कर लेना। देखो, 2 लाख से 2000 करोड़ ये ऐसे ही हो जाएगा। RTGS आर का RTGS का जो आर है दैट लुक्स लाइक 2, है ना, 2 जैसा ही दिख रहा है, सो 2 उससे लर्न हो जाएगा 2 लाख to 2000 करोड़। देन नेफ्ट, देखो नेफ्ट में द लिमिट इज अप टू 10 लाख। तो इसको ऐसे कर लो कि नेफ्ट में देर आर अ लॉट ऑफ वर्टिकल लाइंस, जो नेफ्ट लिखा है ना, एन का भी यहाँ दो, तो उससे ये 10 का वर्टिकल लाइन को कनेक्ट करके यू कैन लर्न दिस कि नेफ्ट का कितना है, 10 लाख रुपीज़ है लिमिट। देन है इमीडिएट मनी पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका है 5 लाख इज़ द लिमिट। सो 5 लाख मतलब 5 लाख, तो 5 का पर यू कैन लिंक इट विद पी, और पी से क्या हो जाएगा, पेमेंट सर्विस, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देन टारगेट कस्टमर्स कौन कौन है इसके, सिंस द क्वांटम इज क्वाइट हाई देयरफॉर बिजनेसेस आर द टारगेट कस्टमर्स। देन वी हैव रिटेल कस्टमर्स फॉर नेफ्ट एंड ऑल यूजर्स फॉर IMPS। सेटलमेंट मैकेनिज्म देख लेते हैं। RTGS में देर इज इंस्टेंट ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट में नेट सेटलमेंट एट 30 मिनट इंटरवल्स, एंड IMPS में भी अगेन देर इज इंस्टेंट सेटलमेंट। देखो, RTGS में देर इज अ लार्ज क्वांटम इन्वॉल्व, बट स्टिल द सेटलमेंट इज डन इंस्टेंटली। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए ग्रॉस भी लिखा है बिकॉज लार्ज अमाउंट इज इन्वॉल्व, तो टोटल कर करके दे विल बी सेटलिंग इट, सो इंस्टेंट ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट में क्या है, even though the the amount involved is lower, still the settlement will be done every 30 minutes। ठीक है, तो 30 minutes के interval पे it will be done, unlike RTGS। and IMPS में क्या रहेगा, instant settlement again will be done। ठीक है, then timing देख लेते हैं, it is 24/7 for all three। previously for RTGS and NEFT, um, it used to be operated only on weekdays, and that too within office hours, but right now it is 24/7 for all three। ठीक है, फीस क्या रहेगा, देखो, सिंस RTGS एंड नेफ्ट आर बीइंग ऑपरेटेड बाय RBI, therefore ₹0 फी रहता है, बस द GST will be taken। ठीक है, the goods and services tax will be taken। However, for IMPS, since it is being operated via NPCI, so a fees may apply। ठीक है, नाउ प्रोवाइडर्स क्या क्या है फॉर बैंक्स, आई एम सॉरी, providers for RTGS will be banks as well as non-banking entities। so non-banking entities जैसे वो Amazon पे होता है, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब चीज़ें, ठीक है, they are non-banking entities। similarly even for NEFT we have banks as well as non-banking entities, both of them can carry out NEFT। and for IMPS, it is available only in banks and PPIs। PPI stands for प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जैसे फ़ोन पे, मोबीक्विक, ये सब चीज़ें, इन दोज यू कैन यूज़ IMPS। सो डू रिमेंबर दिस कि RTGS and NEFT are available for both banks and non-banks, whereas IMPS is available only for banks and PPIs, that is prepaid payment instruments। Next, we'll be looking at LPSs, that is lightweight payment and settlement system। Basically, LPSs का मतलब, it is primarily used, it is वही मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ प्राइमरली यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक वॉर, नेचुरल डिज़ास्टर, ये सब चीज़ों के लिए। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर मनी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, और
हाँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो इवन LPSS इज अ मनी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, बट दिस इज ओनली यूज्ड इन emergency situations. सो इट कैन फंक्शन विद मिनिमल स्टाफ, और कोई भी लोकेशन पे यू कैन जल्दी से यू कैन ओपन अ LPSS, लाइट वेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, एंड दिस इज यूज्ड ओनली इन emergency situations. Next, we'll be looking at National Payment Corporation of India. So NPCI के बारे में आपने पढ़ा होगा. It was established in 2008 and it is registered as a not-for-profit company under the Companies Act. ठीक है. तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, कंपनीज एक्ट में आता है. नाम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. Founding, it was initially founded by 10 banks with 100 crore capital, 100 crore rupees as the capital, and later on it expanded in 2020, and various other players like Paytm, PhonePe, Amazon Pay and others became shareholders of this. ठीक है. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर बैंक्स. ठीक है. तो पूरा जो यूपीआई सिस्टम, ये सारा कुछ इट इज़ बेस्ड अपॉन, इट इज़ बीइंग मतलब इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एनपीसीआई ओनली. ठीक है. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स. तो इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ द ईयर 2008. ठीक है. तो NPCI was formed in 2008. It is a not-for-profit company, and initially it was formed with 10 banks with rupees 100 crore as the capital. ठीक है. तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? देखो, आपको पता होगा पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट कब आया था? 2007 में. यहाँ पे अभी वी आर रेड दिस, ये पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट विच डील्स विद डिजिटल पेमेंट्स. तो देखो 2007 में क्या आ गया था? पेमेंट्स, ठीक है. तो बेसिकली दिस इज़ प्राइमरली फॉर डिजिटल पेमेंट्स. तो डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक लॉ तो आ गया 2007 में, है ना, रेगुलेशन के लिए. However, to promote digital payments, NPCI was formed in the next year, that is 2008 में NPCI was formed by 10 companies. 10 तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा, है ना, and with a capital of 100 crore rupees. ठीक है. तो दिस यू कैन रिमेंबर. देन क्या है, यहाँ लिख लो नेक्स्ट ईयर. फिर एनपीसीआई का यूपीआई देख लेते हैं. यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. डू रिमेंबर द फुल फॉर्म्स बिकॉज दैट में ऑल्सो बी आस्क्ड. ठीक है. तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रहता है. यूपीआई की इट इज़ प्राइमरली बेस्ड अपॉन द IMPS टेक्नोलॉजी, दैट इज़ इमीडिएट पेमेंट सर्विस. अभी हमने पढ़ा था, है ना. इट इज़ अवेलेबल फॉर बैंक्स एंड PPIs, दैट इज़ पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. तो उसी पे बेस्ड है यूपीआई. की फीचर्स क्या क्या है? देयर इज़ QR स्कैन एंड पे, यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस. फिर एक तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं. यू डू नॉट नीड अ प्रीपेड वॉलेट ऑलवेज, यू कैन डायरेक्टली लिंक योर बैंक अकाउंट टू दिस. ठीक है. और ट्रांजैक्शन टाइप्स क्या क्या रहते हैं इसमें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पुश ट्रांजैक्शन, देन पुल ट्रांजैक्शन और बिल स्प्लिटिंग. तो पुश ट्रांजैक्शन क्या है? जो हम लोग खुद कर रहे हैं इंस्टेंटली, जैसे यू आर सेंडिंग मनी टू समवन इन अ फैमिली. ठीक है, वैसे. और पुल ट्रांजैक्शन क्या है? जो ऑटोमेटिक बिल पेमेंट्स होते रहते हैं ना, कि या तो सब्सक्रिप्शन आपने कोई भी ली है गूगल पे, इफ़ यू हैव टेकन एनी सब्सक्रिप्शन, तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट पेड एवरी मंथ. ठीक है. सो दैट कम्स अंडर पुल ट्रांजैक्शन. फिर बिल स्प्लिटिंग अमंग फ्रेंड्स, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, दैट फीचर इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन UPI प्लेटफॉर्म्स.
नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ यूपीआई बेस्ड एप्स. सो वी हैव वेरियस एग्जांपल्स लाइक एसबीआई बडी, योनो, एक्सिस पे, बीम. ठीक है, ये सब. देन है यूपीआई 2.0. दिस वाज लॉन्च्ड इन 2018. इट इज़ एन enhanced वर्जन ऑफ यूपीआई विद मोर फीचर्स. और हाँ, ये इम्पोर्टेंट, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब. ग्लोबल एक्सपेंशन देख लो. एनपीसीआई हैज़ signed agreements with Bhutan, Nepal, Singapore, Europe, Mauritius, and Sri Lanka, etc., thus enabling Indian tourists to make direct UPI payments abroad. ठीक है. सो a lot of जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, along with that we have Europe and हाँ मतलब यूरोप also, and there are other countries as well wherein Indian tourists can make direct UPI payments. ठीक है. यूपीआई की डेली ट्रांजैक्शन लिमिट्स देख लेते हैं हम लोग. सो इज ₹1 लाख. यूपीआई डेली ट्रांजैक्शन लिमिट्स कैटेगरी वाइज देखते हैं. इट इज़ ₹1 लाख पर डे फॉर नॉर्मल ट्रांजैक्शंस एंड ₹2 लाख पर डे फॉर कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस. ठीक है. सो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट. ₹1 लाख per day for normal transactions and ₹2 लाख for capital transactions. कैपिटल मार्केट्स जैसे म्यूचुअल फंड में अगर इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट by using a UPI app, UPI based platform, then you can invest around ₹2 लाख per day. ठीक है. तो 1 लाख है नॉर्मल लोगों के लिए, और जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं उन लोगों के लिए इट इज़ डबल, दैट इज़ 2 लाख. ठीक है. नेक्स्ट है ₹5 लाख पर डे. किसके लिए? इट इज़ ₹5 लाख per day for retail direct scheme if you want to purchase government securities. ठीक है. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर कोई परचेज कर रहा है तो उसको प्रमोट करने के लिए दे आर अलाउइंग ट्रांजैक्शंस अप टू ₹5 लाख पर डे. सिमिलरली अगर कोई आईपीओ है किसी कंपनी का आया है एंड इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब टू दैट आईपीओ देन यू कैन पे ₹5 लाख वाया यूपीआई प्लेटफॉर्म. देन मेडिकल और एजुकेशनल सर्विसेज की अगर कोई पेमेंट्स करनी है उसके लिए भी द लिमिट इज़ ₹5 लाख. एंड अगेन टैक्स पेमेंट्स है कोई गवर्नमेंट के लिए, इवन दैट ₹5 लाख पर डे का लिमिट है. तो जो भी चीज़ें गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट फॉर दैट दे हैव गिवन अ बिगर लिमिट. ठीक है. तो देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का परचेज तो उनको चाहिए कि हाँ परचेज करें गवर्नमेंट सिक्योरिटी सो दैट गवर्नमेंट गेट्स मोर अमाउंट ऑफ मनी विच कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेज लाइक इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन. ठीक है. तो उसके लिए दे हैव अलाउड ₹5 लाख पर डे. देन आईपीओ सब्सक्रिप्शंस, जैसे कोई भी कंपनी का आईपीओ आएगा, ज़ेप्टो का शायद आ गया है या आने वाला है पता नहीं, है ना. इन सब कंपनीज का इफ़ यू वांट टू बाय अ आईपीओ, सो इफ़ अ पर्सन बायज एन आईपीओ तो क्या होगा, मनी विल एंटर द स्टॉक मार्केट, है ना. सो दैट विल बी ओवरऑल मतलब बेनिफिशियल फॉर द कंट्री. ठीक है. सो इवन आईपीओ सब्सक्रिप्शंस 5 लाख पर डे इन अलाउड है. देन मेडिकल एंड एजुकेशनल सर्विसेज बोथ ऑफ देम आर मतलब सोशली वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज, देयरफॉर उनके पेमेंट्स के लिए भी 5 लाख रुपए का है सम. फिर है टैक्स पेमेंट्स टू द गवर्नमेंट. अगेन फॉर दैट ऑल्सो सिंस obviously the government will be promoting this, therefore ₹5 लाख per day is allowed. ठीक है. So remember the limits. 2 lakh for कैपिटल मार्केट्स दैट इज़ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करनी है, पर अगर आईपीओ में डालना है हमें देन 5 लाख का अमाउंट मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट यूपीआई का पुश वर्सेस पुल ट्रांजैक्शंस. सो पुश ट्रांजैक्शंस अभी पढ़ा था, फिर से आई विल बी टेलिंग यू. इट इज़ यूज़र इनिशिएटेड. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल यू गो टू अ शॉप एंड बाय समथिंग देन यू मेक अ पेमेंट बाय यूपीआई, सो दैट विल बी अ पुश ट्रांजैक्शन. वेराज पुल ट्रांजैक्शन है जो प्री ऑथराइज्ड है. जैसे आपने जनवरी में नेटफ्लिक्स का सपोज सब्सक्रिप्शन ले लिया, देन एवरी मंथ द मनी विल बी डिडक्टेड ऑटोमेटिकली. ठीक है. ऑटोमेटिक मंथली बिल पेमेंट्स होगा एंड प्री ऑथराइज्ड डिडक्शंस बोलते हैं इनको, एंड दैट कम्स अंडर पुल ट्रांजैक्शन.
नेक्स्ट है यूपीआई डेलीगेटेड पेमेंट्स टू क्रिएट सेकेंडरी अकाउंट्स. सो फॉर एग्जांपल, किसी फादर ने अपने बच्चों के लिए अकाउंट बनाया है, सेकेंडरी अकाउंट बनाया है यूपीआई का. सो दैट चाइल्ड कैन यूज यूपीआई पेमेंट्स फ्रॉम द फादर अकाउंट अप टू अ सर्टेन लिमिट. ठीक है, तो अपना मोबाइल यूज़ करके यू कैन मेक पेमेंट्स फ्रॉम योर फादर्स या जिसके भी अकाउंट पे बना है, सो सेकेंडरी अकाउंट बना सकते हैं. सो यूपीआई हैज़ डेलीगेटेड पेमेंट्स टू क्रिएट सेकेंडरी अकाउंट्स. सो अब फादर का जैसे प्राइमरी अकाउंट है यूपीआई का, he creates a secondary account for the daughter. Then she can use money from father's bank account up to rupees x का लिमिट यूजिंग अ मोबाइल. ठीक है, तो ये जो हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए दिस इज़ बेनिफिशियल. सो क्या होगा, दे कैन मतलब जो उनके पेरेंट्स है, दे कैन मेक अ सेकेंडरी यूपीआई अकाउंट फॉर देयर wards for their kids, and then the kids can use their mobile to make payments from their parents accounts. ठीक है, and that will be only up till a particular limit. नेक्स्ट है एनपीसीआई का यूपीआई 123 पे. सो एनपीसीआई का ये एक फीचर है, एंड इट इज़ प्राइमरली प्रेजेंट ओनली इन फीचर फ़ोन्स. फीचर फ़ोन्स आपको पता होंगे, वो जो नोकिया के पुराने फ़ोन्स आते थे ना, विच हैड बटन्स एंड एवरीथिंग, दैट इज़ नोन एज अ फीचर फ़ोन. सो इन रूरल इंडिया स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल यूज़ फीचर फ़ोन्स ओनली. ठीक है, तो उनको यूपीआई का बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए 123 पे करके फीचर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. सो इसका नाम ही 123 पे है ना. सो इट enables यूपीआई पेमेंट्स ऑन बेसिक फीचर फोन्स विच डू नॉट हैव इंटरनेट. ठीक है, तो इसका की फीचर्स क्या क्या है. सो ये यूएसएसडी कोड रहता है एक 99 हैश, उसको टाइप करके दे कैन मेक सर्टेन पेमेंट्स फ्रॉम देयर ओन. जो हमारा वो सिम कार्ड में जितना पैसा डालते हैं ना, उसके थ्रू दे कैन मेक पेमेंट्स. ठीक है, सो यूएसएसडी, ट्राई टू रिमेंबर दैट. आई जस्ट चेक द फुल फॉर्म इसका. यूएसएसडी स्टैंड्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. ठीक है, देन वी हैव आईवीआर, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जिसमें वॉइस बेस्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं. सो फॉर द जैसे रूरल पॉपुलेशन में देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट वेरी लिटरेट. ठीक है, तो इलिटरेट जो पॉपुलेशन रहता है उनके लिए देर इज़ आईवीआर, दैट इज़ इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स. सो दे कैन डायरेक्टली स्पीक इन देयर मोबाइल फोन ऑन दैट ट्रांजैक्शन विल गेट डन. ठीक है, फिर है मिस्ड कॉल पेमेंट्स. So users give a missed call and the system calls back for the transaction. Then there are also proximity sound based payments, जिसमें sound waves are used for contactless transaction. ठीक है, then we have utility bill payments like gas electricity bill का अगर payment करना है, so that can also be done via feature phones. Then we also have bank account linking. So it enables money transfer, balance checks, bill payments, etc. and even FASTag recharges. Okay, then there's a new UPI app for feature phones, which allows which gives them a simplified interface for easy transactions. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में, 1 to 3 पे जो है उसके फीचर्स क्या हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ 1 to 3 पे. ठीक है, और ये सब ऑप्शंस में दिए रहेंगे और 2-3 कुछ और गलत सलत ऑप्शन भी दिया रहेगा. सो देन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम आर करेक्ट.
ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसएसडी रहता है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है। देन आईवीआर, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। फिर मिस कॉल पेमेंट्स, प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, है ना, बैंक अकाउंट लिंकिंग और न्यू यूपीआई ऐप। ठीक है, तो these are important, you should remember the names of these, so that is why I'll highlight the names at least. Next we have UPI observations which were done in economic survey 2023. So I have taken this from Mrunal sir's 2024 course, that is why यहाँ पे 2023 के observations दिए हैं. So these are not very important for the upcoming examination. ठीक है, so we can skip this portion. नेक्स्ट है यूपीआई सिंगल ब्लॉक एंड मल्टी डेट फंक्शनैलिटी. सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड जस्ट नो द नेम के सिंगल ब्लॉक मल्टी डेबिट फंक्शनैलिटी भी है यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पे. ठीक है, देन वी विल बी लुकिंग एट यूपीआई लाइट. So, in UPI Lite, it is also known as an on-device wallet. The user adds money from his bank account to his UPI Lite wallet on his mobile app. ठीक है, and then this money can be further used. So, UPI Lite और UPI Lite X में क्या क्या फ़र्क है? We'll just see those first. UPI Lite, it allows transactions up to rupees 500 without a PIN, and it works even if the sender's bank server is down or the app cannot connect to the core banking solution CBS. However, it requires internet connectivity. Whereas UPI Lite X में same, there's a 500 rupees limit without a PIN, and it also works offline using NFC technology. So NFC stands for near field communication. So the user must come online within 4 days for a data synchronization. ठीक है, so this is quite important. UPI Lite is only, it requires internet connectivity, whereas for UPI Lite X, it can work offline as well using near field communication technology, and the user should come online within 4 days for data synchronization. ठीक है, 500 रुपीज़ का लिमिट ऐसे ही लोन हो जाएगा, 500 रुपये, इट्स नॉट मच. नेक्स्ट है प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन. So basically, when a banker allows an account holder to borrow up to a predetermined amount of money without having to apply for a loan, it is called a pre-sanctioned credit line. So overdraft type ही रहता है ये भी. So the amount is predetermined in this case, and the user does not have to apply for a loan or anything. ठीक है. So we'll look at the next topic, UPI pre-sanctioned credit line or overdraft in UPI. So UPI with a pre-sanctioned credit line has also been launched. So RBI allows overdraft facility on UPI also. So users can make UPI payments even without sufficient bank balance. So even if you do not have a sufficient bank balance, a UPI payment can be done via the overdraft facility. So bank recovers the amount when salary or pension or income is credited. ठीक है, तो वही है मैंने जो बताया था आपको, इवन इफ यू हैव 0 rupees इन योर बैंक अकाउंट, द अमाउंट कैन गो टू माइनस, मतलब कि यू कैन विड्रॉ सर्टन अमाउंट. जैसे प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स में अप टू 10,000 रुपीज़ यू कैन विड्रॉ एज ओवरड्राफ्ट. ठीक है, सिमिलरली यूपीआई वगैरह में भी देयर मे बी सर्टन लिमिट्स, एंड दीज लिमिट्स आर प्री डिटरमाइंड, प्री सैंक्शनड भी बोलते हैं. प्री सैंक्शनड और प्री डिटरमाइंड अमाउंट्स रहते हैं ये.
ठीक है, यू डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर अ लोन फॉर्मली, बट सीधा ही आपको ऐसे मिल जाते हैं पैसे। नेक्स्ट है यूपीआई का बेनिफिट्स ऑफ यूपीआई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। BNPL and financial inclusion. So BNPL stands for buy now pay later. So BNPL model, it can help customers, especially the poor, by offering small loans during last weeks of the month when they face financial strain. So many people cannot travel to banks for loans, so they borrow money from local money lenders at high interest rates. Therefore, UPI overdraft can provide a solution, thus aiding financial inclusion by offering accessible low interest options. तो बस वही दिया है इसमें. This is not very important. I'll tell you. यहाँ पे जैसे ये एक फार्मर है, इनका इनकम comes at around the मतलब स्टार्ट ऑफ अ मंथ, जैसे मार्च फर्स्ट को इनकी इनकम आ गई. ठीक है, सो ही हैज़ टू यूज़ दिस मनी फॉर द इंटायर मंथ, है ना. सो इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च व्हाट हैपेंस इज दैट ही रन्स आउट ऑफ मनी. तो क्या करेंगे फिर ये, दे he'll have a tendency to go to a money lender who will give money at very high interest rates. ठीक है, तो ये ना करना पड़े उसके लिए यूपीआई overdraft facility is provided wherein he can withdraw over and above his balance. ठीक है, overdraft facility, and the interest rate is quite low for this. So this ensures financial inclusion of the rural population as well. ठीक है, next है यूपीआई ICCW, that is interoperable cardless cash withdrawal. कार्डलेस कैश विड्रॉल वाया यूपीआई. सो फीचर क्या है, विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम्स यूजिंग यूपीआई इंस्टेड ऑफ अ फिजिकल कार्ड. बेनिफिट्स क्या है, यू डू नॉट हैव टू कैरी अराउंड अ डेबिट कार्ड एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कार्ड क्लोनिंग एंड एटीएम फ्रॉड. ठीक है, सो इफ़ यू गो टू अ एटीएम यू कैन ऑल्सो यूज योर मोबाइल मतलब यूपीआई इन योर मोबाइल कार्ड मोबाइल्स to get the requisite amount of money out. ठीक है, so physical cards का there is always a risk of them getting cloned, है ना. तो वो सब that can be avoided. Next है यूपीआई QR code based coin vending machines using UPI. So traditionally you usually insert a paper note to get a coin, है ना, जो coin vending machines होते हैं वैसे उसमें. But there's a new experiment which has been done by RBI, under which if you scan a QR code, transfer money from your bank account via UPI to the machine, then you'll be able to get coins from the machine. ठीक है, so you don't have to put a paper note and exchange it with coins. Instead you'll directly get coins in return for money from your bank जो यूपीआई से ट्रांसफ़र करेंगे आप. सो दिस इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे भी यू शुड नो द फुल फॉर्म. ICCW का फुल फॉर्म शुड बी नोन टू यू, इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड अगेन ऊपर भी BNPL का फुल फॉर्म शुड बी नोन. नेक्स्ट है यूपीआई फॉर कैश डिपॉजिट मनीज machines. When you want to deposit cash in a cash deposit machine, you have to log into your bank account. ठीक है, to ensure that deposited cash goes into your bank account only. So पहले क्या होता था, यू यूज टू लॉग इन वाया इंसर्टिंग अ डेबिट कार्ड, है ना. तो अभी क्या होता है, नाउ यू कैन ऑल्सो लॉग इन बाय स्कैनिंग योर यूपीआई ऐप. स्कैनिंग अपना यूपीआई ऐप के थ्रू ही यू कैन लॉग इन टू द कैश डिपॉजिट मनी मशीन. ठीक है, सो अगेन दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लर्न द फुल फॉर्म. CDM क्या है, कैश डिपॉजिट मशीन.
and you can directly log into it via the UPI app. नेक्स्ट है यूपीआई फॉर कार्डलेस कैश विड्रॉल एट एटीएम्स. अगेन सेम चीज़ रिपीट हो गई है शायद. अच्छा नहीं, we have already read about this that earlier you used to only withdraw money via your debit or debit card है ना. But now you can log in via scanning your UPI app and still, and then you'll be able to withdraw money from the ATM. नेक्स्ट है NPCI UPI भीम. फुल फॉर्म क्या है भीम का? इट स्टैंड्स फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी. ठीक है. सो भीम यूपीआई ऐप was developed by NPCI, and platform क्या है? It works on Android, iOS and even basic phones. बेसिक जो फीचर फोन्स होते हैं उस पर भी. *99#USSD, हमने वी हैड रेड अबाउट दिस अर्लियर ऑल्सो, है ना. यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट स्टैंड्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. मतलब डेटा विच इज़ अनस्ट्रक्चर्ड एंड इट इज़ सप्लीमेंट्री, इट इज़ नॉट प्राइमरी, है ना. अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. सो सर्विस तो ये है ही, है ना. तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा वैसे लर्न कर लो. एंड भीम यूपीआई वर्क्स ऑन फीचर फोन्स एज वेल. फंक्शनैलिटी क्या है? ensures bank to bank or peer to peer transfers using UPI ID, and it is a single app for all banks and there is no need for separate banking apps. ठीक है. ऑथेंटिक authentication के लिए it uses two factor authentication as has been recommended by NPCI. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि एक तो पासवर्ड या कुछ लेता होगा, फिर पिन लेता होगा, है ना. इसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोल देंगे. फिर या तो ओटीपी अगर भी लेगा, दैट विल बिकम थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन. ठीक है. सो इट इज़ प्राइमरली एम्ड एट ऑथेंटिकेटिंग वेदर द यूज़र इज़ करेक्ट पर्सन और नॉट, है ना. कोई और यूज़र तो नहीं यूज़ कर रहा फ़ोन. ठीक है. तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए देयर इज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म. नेक्स्ट है मनी स्टेज इन द बैंक अकाउंट. सो इट अर्न्स इंटरेस्ट अनलाइक वॉलेट बेस्ड एप्स. सो वॉलेट बेस्ड एप्स में क्या होता है? यू हैव अ प्रीपेड वॉलेट वेर इन यू पुट योर मनी and that is used by you via UPI, the UPI platform. Whereas in Beam and even in other apps also nowadays, सारे बैंक अकाउंट लिंक्ड होते हैं. ठीक है. सो दे आर लिंक्ड टू द बैंक अकाउंट, देयरफॉर it will automatically be earning interest also. The money which is in the bank account, it will be earning interest. Otherwise यह जो प्रीपेड वॉलेट में होता था वो फिर आइडल मनी ऐसे ही बैठा रहता था. देयर वॉज नो इंटरेस्ट विच वी वर रिसीविंग ऑन दिस. ठीक है. सो दिस इज़ बेटर. नेक्स्ट है नो कार्ड्स इन्वॉल्व एंड देयर विल बी नो मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स. मर्चेंट डिस्काउंट रेट आपको पता होगा, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पेड बाय द मर्चेंट, है ना. सो वो भी नहीं पे करना पड़ता है इसमें, एंड देर आर नो हिडन चार्जेस इन्वॉल्व एज वेल. ठीक है. नेक्स्ट वील मूव टू NPCI रुपे कार्ड पेमेंट गेटवे. ठीक है. तो इसमें क्या क्या है? रुपे कार्ड, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस. जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये सारे पेमेंट गेटवेज के एग्जांपल्स हैं. सिमिलरली रुपे इज़ ऑल्सो अ पेमेंट गेटवे. ठीक है. सो पेमेंट गेटवे, इट इज़ इंडियाज सेवेंथ payment gateway, similar to MasterCard, Visa, Union Pay, etc. So you need to remember that it is India's seventh payment gateway. ठीक है. This is an important fact. फिर है फी स्ट्रक्चर क्या है? चार्जेस लोअर फीस कंपेयर टू अदर्स. सो जो MDR वगैरह है, इट इज़ वे लोअर इन रुपे कार्ड एज कम्पेयर टू मास्टर कार्ड, वीज़ा एंड यूनियन पे, और ऐसे ये सब जो होते हैं, माइस्ट्रो एट्सेट्रा. ठीक है. सेवेंथ पेमेंट गेटवे है, इसको कैसे लर्न करेंगे? जो रुपए 7 इज कंसिडर्ड टू बी लकी नंबर. ठीक है. इवन इफ यू मे हैव सीन
हैरी पॉटर, हाँ उसमें भी जो वर्ल्ड मॉड था उसको 7 पसंद था, ठीक है। तो वैसे करके लर्न कर लो आप कि 7 इज़ अ लकी नंबर, है ना। सो देयरफॉर रुपे कार्ड जो है दैट इज़ सेवेंथ पेमेंट गेटवे, ठीक है। रुपे हमारा, हाँ, इट इज़ इंडिजिनियसली डेवलप्ड, दैट इज़ सेवन, देयरफॉर इट इज़ लकी फॉर अस, ठीक है। तो वैसे करके यू कैन लर्न दिस। नेक्स्ट है, इट वर्क्स इन थ्री चैनल्स। रुपे कार्ड वर्क्स इन थ्री चैनल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वर्क्स एट एटीएम्स, तो ये तो पता ही होगा। देन पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स, जो शॉप्स में जाते हैं, देयर इज अ स्मॉल मशीन, है ना, उसको पीओएस या पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन बोलते हैं। देन इट इज़ ऑल्सो, इट ऑल्सो वर्क्स इन ऑनलाइन पोर्टल्स एज वेल, ठीक है। तो तीनों में काम करता है। देन रुपे कार्ड, यू जनरली गेट अ फ्री रुपे कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड विद प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट, ठीक है। एंड ग्लोबल एक्सपेंशन क्या है, दे हैव मेड कोलैबोरेशंस विद डिजिटल पेमेंट कंपनीज इन सिंगापुर, जापान एट्सेट्रा, बट currently it is not as widely accepted as mastercard or visa or maestro, ठीक है। सो they have been trying to make collaborations with various digital payment companies, but still it has not been very widely accepted globally. Next, we'll look at credit card network portability order by RBI. So before, suppose a client had, मतलब वही है, क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क पोर्टेबिलिटी ऑर्डर। Suppose a client had an SBI Visa credit card, then he is stuck with the Visa network. So even if RuPay cards networks are giving better discount offers on railway tickets, the person could not avail it, ठीक है। तो अगर मेरे पास SBI का वीज़ा क्रेडिट कार्ड है, सो आई वोंट बी एबल टू अवेल द डिस्काउंट्स विच आर ऑफर्ड फॉर रुपे कार्ड्स, ठीक है। ऐसा पुराना सिस्टम था। बट आफ्टर द 2024 रिफॉर्म, banks or NBFCs were required to give a choice to new customers to select among different credit card networks, ठीक है। तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स हैं, मास्टर, जो जो भी पेमेंट गेटवेज हैं उनके अपने क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स होते हैं, जैसे मास्टर कार्ड, रुपे, Visa, etc. So, existing or old credit card customers can also switch networks at the time of card renewal if they wish to. Therefore, अगर उनको चाहिए तो they can avail the benefits which are available to other cards as well. ठीक है। नेक्स्ट है NPCI other notable initiatives. So, NPCI and its other notable initiatives में वो उनके जो सर्विसेज हैं उनका ओवरव्यू दिया है। So we have Bharat Bill Payment System and Unified Presentment Management System. So the um, full forms are important, ठीक है। UPMS का क्या है, यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बोथ ऑफ दीज हैव बीन लॉन्च्ड बाय Bharat Bill Pay Limited in January 2022, and they are basically monthly bill payment, utility bill payment mechanisms, ठीक है। तो अपने आप automatic reduction of money from the account will happen via these systems, ठीक है। तो BBPS है और UPMS है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम एंड यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट management system. Then we have NFS, which stands for National Financial Switch, which runs the ATM network. Apart from that, we have the check truncation system as well, which is primarily used for digital check processing. After that, we have NETC, which stands for National Electronic Toll Collection, and it basically supports FASTag toll collection.
देन PAI chatbot भी होता है, which is an AI based chatbot for queries related to NPCI products like FASTag, RuPay, UPI, Aadhaar enabled payment systems, etc. We also have a DigiSathi helpline. उसका ये 14431 नंबर है. It is basically RBI's helpline for digital and card payment issues. Then डाक पे करके भी है. It is a payment app for payment app by the Department of Post and India Post Payments Bank. ठीक है, तो इनके नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच का, आई रिमेंबर दिस वाज आस्क्ड इन आइदर इन 2018 और 2019 आई थिंक, है ना. उसके बारे में पूछा था कि हु रन्स दिस, तो इट वाज एनपीसीआई. ठीक है. देन चेक ट्रंकेशन सिस्टम, अगेन इट कम्स अंडर द एनपीसीआई अम्ब्रेला. देन वी हैव NETC, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, एंड दैट supports फास्टैग टोल कलेक्शन. ठीक है. अगेन इसका फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then PAI chatbot, which is basically an AI based chatbot for queries related to NPCI products like FASTag, RuPay, UPI, Aadhaar enabled payment systems, etc. So PAI chatbot is also important. ठीक है. It is an AI based chatbot under NPCI. Then DigiSathi helpline. Now this is RBI's हेल्पलाइन. सो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट. ऐसे पूछ सकते हैं कि NPCI के अंडर आता है, बट नहीं, दिस इज RBI's हेल्पलाइन. ठीक है. फॉर डिजिटल एंड कार्ड पेमेंट इश्यूज. नेक्स्ट है डाक पे. डाक पे is a payment app by Department of Post and India Post Payments Bank. So again, this is also very important. This is not under NPCI. It is a different app made by Department of Posts. ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर है ये. डाक पे, डाक से आपको यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट. डाक मतलब पोस्ट को ही बोलते हैं, हिंदी वर्ड है डाक. ठीक है. नेक्स्ट है नाच ABPS, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस. ठीक है. एंड आधार बिल पेमेंट, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स. सो दे आर बेसिकली हाइब्रिड और मिक्स्ड मोड इन यूज एज हाइब्रिड और मिक्स्ड मोड इन महात्मा गांधी नरेगा उसके पेमेंट्स करने के लिए. उसका नाम अभी VBG राम कर दिया है ना. सो बोथ दीज टेक्नोलॉजीज वर डेवलप्ड बाय NPCI. नाच एंड AEPS का ओवरव्यू देख लेते हैं. नाच का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस. अगेन द फुल फॉर्म इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. इट इज़ यूज्ड फॉर bulk payments such as utility bills, salaries, pensions, dividends and insurance premiums. ठीक है. तो अगर बल्क पेमेंट करना है, फॉर दैट यू कैन यूज नाच. ठीक है. फिर है आधार enabled payment system. So Aadhaar based payment system for direct benefit transfers like Mahatma Gandhi Narega, wages, LPG subsidies and scholarships. ठीक है. सो इट इज़ एन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम. बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, जैसे अगर फार्मर्स है, दे विल बी गेटिंग मनी फॉर बाइंग सीड, है ना. सो दैट मनी इज सेंट वाया AEPS, दैट इज आधार enabled पेमेंट सिस्टम. देन है आधार बेस्ड payment system ABPS, which is similar to AEPS, and it is used for transferring money to bank accounts linked with Aadhaar. So both AEPS और ABPS are similar things. ठीक है. बस नाम याद होना चाहिए, and full form also you should remember. Then usage in Mahatma Gandhi Narega, both NACH and ABPS are used for Mahatma Gandhi Narega wage payments known as mixed payment mode. ठीक है. सो बल्क पेमेंट, जैसे गवर्नमेंट इज पेइंग सैलरी, या सैलरी टाइप ही है ना.
Mahatma Gandhi Narega mein. So it will be paying to a lot of people. So for that, since it is a bulk payment, they will be using NACH, that is National Automated Clearing House. ठीक है. और इसका न्यू नाम क्या है महात्मा गांधी नरेगा का? वीबी जी राम जी, दैट इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण. ठीक है. बोथ नाच एंड एबीपीएस आर यूज्ड हियर. गवर्नमेंट प्लान्स क्या है? इट एम्स टू fully transition to ABPS, but technical and operational issues still remain. Exemptions are some people without Aadhaar are exempt from Aadhaar based payment systems. And political allegations के opposition claims that the government is weaponizing technology to deny payments to those without Aadhaar. ठीक है. So this is not important from the preliminary examination point of view, but still you should know this from the mains examination point of view. ठीक है. This is an important fact. फैक्ट नहीं मतलब एक क्रिटिसिज्म के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. So, direct benefit transfer e-rupee by NPCI. So, e-rupee क्या होता है? It is basically a feature which is given by NPCI, National Payment Corporation of India Limited. It is an SMS or QR code based prepaid cashless electronic voucher. ठीक है. And it has been created by NPCI using its UPI platform. तो इसका ये आप याद रखिएगा. SMS और QR कोड बेस्ड प्रीपेड कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है ये. टोकन टाइप, ई टोकन टाइप कुछ है. इट इज़ सपोर्टेड बाय बोथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. ठीक है. और इसके यूजेस क्या है? इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक फूड फॉर मदर्स, चिल्ड्रन, पुअर फैमिलीज, इन सब के लिए. सो दे इशू अ ई रूपी एंड द beneficiary can then go and use this e-rupee to get that food. ठीक है. Similarly medicines के लिए भी ये यूज़ करते हैं. Then subsidies के लिए भी. And private sector में also this can be used for gym memberships, tourism, CSR programs by companies etc. ठीक है. So storage limit क्या है वाउचर का? It is ₹1 lakh per voucher. Again this is an important fact. And initially there was only one time use allowed. Now however now vouchers can be used multiple times until the amount is exhausted. ठीक है. तो 1 lakh का वाउचर है, so it can be used multiple times until it does not get exhausted. And where all it can it be used? It is used for government schemes, health purposes के लिए medicines वगैरह लेने हैं तो government will issue an e-rupee and you can directly get the medicine from the specified outlet. फिर subsidies के लिए fertilizer subsidies वगैरह के लिए. Then private sector में gym memberships, tourism, CSR programs etc. all of these can use e-rupee. ठीक है. UPI का प्लेटफॉर्म पे है and it is created by NPCI. Now, e-rupee vouchers, the scope was expanded in 2023. So, who can buy e-rupee vouchers? It is both government as well as the companies. They can buy e-rupee. And matlab before government and companies only could buy it, but after 2023, government, companies and even individual persons can now buy it. ठीक है. So example you can buy it for gifting to other people. So वही टाइप है. गिफ्ट वाउचर्स होते हैं ना, कोई कोई आपने देखा होगा अमेजोन या मैकडोनल्ड्स का जो गिफ्ट वाउचर होता है. इट इज़ अ सिमिलर कॉन्सेप्ट. हाउएवर इट कैन बी यूज एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस. ठीक है. नेक्स्ट है हु कैन सेल e-rupee codes or vouchers. So earlier only banks could sell these vouchers. However, after 2023 June, both banks and non-bank prepaid payment instruments, that is PPIs, both of them can sell e-rupee vouchers. ठीक है.
Where now we'll be looking at QR codes. These are compulsory to implement UPI or Bharat QR from 2022. It is compulsory to implement. अच्छा. So 1990s में a QR code, that is a two-dimensional quick response code, was developed for the first time in Japan. ठीक है, so it's originated in Japan, and in India, Indian e-payment systems function on three types of QR codes primarily. So first of all, we have the proprietary QR code, then we have UPI ka QR code, and then we have Bharat QR code. ठीक है, प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड क्या है? एग्जाम्पल पेटीएम और फ़ोनपे का जो एक्सक्लूसिव क्यूआर कोड्स होते हैं ना, दोज आर नोन एज प्रोप्राइटरी वंस. However, the problem with this is that the apps of other companies may not be able to scan and pay it. So, RBI has prohibited companies from launching any new proprietary QR codes. ठीक है, सो इनका बस वही है कि अगर पेटीएम का QR code है, then you cannot make payment from Google Pay on Paytm. ठीक है, this was a proprietary QR code. However, this has been discontinued. Next है UPI QR code. It is generally generated by UPI app of NPCI, and it can be scanned by all apps which are developed using UPI technology. So this is in it is being used nowadays. So आजकल you might have seen कि even if you have Google Pay or Paytm, whatever you have, whichever QR code you give to the other person, they will be able to pay to you. ठीक है, so the प्लेटफॉर्म डज नॉट मैटर, कंपनी का जो भी ऐप है दैट डज नॉट मैटर. द ओनली थिंग इज दैट इट शुड बी यूजिंग यूपीआई टेक्नोलॉजी. ठीक है, देन वी ऑल्सो हैव भारत क्यू आर कोड. So it was developed by NPCI with the help of Visa and MasterCard. So it can be scanned by all apps which are developed using UPI technology. So again, this was also developed by NPCI. However, they took the help of Visa as well as MasterCard when it came to this. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं RMQR, दैट इज रेक्टेंगुलर माइक्रो QR कोड. ठीक है, ये तीन टाइप के हो गए, प्रोप्राइटरी, UPI एंड भारत QR कोड. सो ट्राई टू रिमेंबर दिस. Proprietary QR code, UPI QR code, and Bharat QR code. Then we have rectangular micro QR code. So the inventor of this was Masahiro Hara, again a Japanese person, Japanese engineer, who originally designed the square QR code in 1990s. So new development है, it is currently working on the rectangular MQR, that is micro QR code. Advantages क्या है? It can be printed in narrow spaces and it has the same scanning speed as the traditional square QR code. So you need to remember the name of the inventor, Masahiro Hara. तो हीरो से आप लर्न कर लो कि he is very heroic since he developed the rectangular micro QR code. ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स which are also known as plastic money. So basically there are different type of cards. So first of all we look at the various types. तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड आता है ना. इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर बोरिंग मनी टू शॉप. ठीक है, तो इट इज़ सिमिलर टू अ लोन. ठीक है, सो इंटरेस्ट इज charged if used for withdrawing money from ATMs, and it also offers rewards, gifts, etc. based upon spending. ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली यूज फॉर बोरोइंग मनी टू शॉप. ठीक है, देन डेबिट कार्ड, this basically withdraws money directly from your existing bank balance, thus it is not akin to borrowing. It is used for ATM withdrawals or purchases as well.
क्रेडिट कार्ड वर्सेस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखो ओवरड्राफ्ट में भी क्या होता है कि इवन इफ योर अकाउंट बैलेंस इज ज़ीरो, इवन देन यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट। ठीक है, सो इसका देर आर सर्टन लिमिट्स, देर इज़ अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट। ठीक है, जितना आप कर सकते हो प्री डिटरमाइंड रहता है कि आप बस इतना अमाउंट यू कैन विड्रॉ when it comes to overdraft facility. For example, Pradhan Jan Dhan accounts, you have an overdraft facility of around rupees 10,000. ठीक है, so that is what an overdraft facility is. Whereas credit card is generally used for shopping, etc. ठीक है, and there are also many rewards which are provided for spending more money. Whereas overdraft facility mein you need to visit a bank and there's no rewards involved in this and it's a manual process. फिर डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट में डिफरेंस देख लेते हैं। डेबिट कार्ड तो बेसिकली वही है कि अपना जो बैंक बैलेंस है, बैंक अकाउंट है, उसमें से यू विड्रॉ मनी डायरेक्टली। ठीक है, वेराज जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है दिस दैट इज नॉट कार्ड बेस्ड एंड इट रिक्वायर्स अ मैनुअल प्रोसेस। दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट इट इज नॉट कार्ड बेस्ड एंड इट रिक्वायर्स अ मैनुअल प्रोसेस। ठीक है, फिर है हाइब्रिड और डुओ कार्ड। So it is basically a single card which has both the credit as well as debit functionalities. ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इंडस बैंक का हाइब्रिड कार्ड। ठीक है, इंडस बैंक आप याद रखना। देन वी ऑल्सो हैव प्रीपेड कार्ड्स। सो basically a prepaid card is a type of debit card but which is not linked to a bank account. ठीक है, and it can be purchased without a bank account as well. So an example of this will be IRCTC's UBI prepaid card for purchasing tickets and meals. Do remember this example because it may be asked कि किस type का card है, so you should be knowing कि IRCTI's IRCTC's UBI is basically a prepaid card. ठीक है, you यूबीआई का वही फुल फॉर्म है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रीपेड कार्ड होता है। ठीक है, वही आई वाज टेकिंग व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ यूबीआई इज। सो बेसिकली इट रेफर्स टू द बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, प्रीपेड कार्ड मिलता है आईआरसीटीसी में। एंड वही दैट इज ऑल विच इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम हियर। फिर है कार्ड टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब होता है कि यू विल बी रिप्लेसिंग सेंसिटिव कार्ड डेटा विद अ यूनिक टोकन। ठीक है, तो जैसे 16 डिजिट नंबर, एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड, ये सब जो कार्ड का डेटा होता है ना, देन देयर इज अ सीवीवी नंबर ऑल्सो, ऑल ऑफ दैट विल बी रिप्लेस्ड विद अ यूनिक टोकन। ठीक है, एंड पर्पस क्या है इसका? इट प्रोटेक्ट्स कार्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज टू द मर्चेंट वेबसाइट्स, thus reducing the risk of hacking. So, process है card owners can generate tokens via the card issuer's website or app on various devices, or and it has become mandatory from October 1st 2022. ठीक है, so basically card tokenization is a mechanism for ensuring security of the card so that the sensitive card data cannot be accessed by the merchant websites. नेक्स्ट है CVC लेस ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। सो CVC रेफर्स टू द कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, ये आपने देखा होगा कार्ड में पीछे लिखा होता है ना। इट इज़ टिपिकली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एवरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड RBI टोकनाइजेशन नॉर्म्स के बाद में CVC विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो जो मास्टर कार्ड है,
मास्टर के पास भी एक there's a mechanism which is CVC less transactions, but this is not important for the examination. Just look at this के जो कार्ड टोकनाइजेशन है ना, उसके बाद से you do not require the card holder verification code for making transactions. ठीक है. Next we'll be looking at auto debit or e-mandates and additional factor of authentication. So auto debit or e-mandate or recurring. So it allows companies to deduct money from your account or card for services like Netflix subscriptions. ठीक है, तो ऑटो डेबिट हो जाएगा, अपने आप डेबिट हो जाएगा, या ई मैंडेट है, या रेकरिंग पेमेंट भी बोलते हैं इसको. ठीक है. एंड ऑथेंटिकेशन क्या चाहिए? It requires two-factor authentication. So you'll have to give the username or the password or card details, and an OTP SMS will be sent to you as an additional factor of authentication. So OTP requirement for recurring transactions क्या है? Up to 15,000 rupees. There is no OTP required for recurring payments. This is very important. ठीक है. So do remember the limits. ठीक है. So up to 15,000 rupees के जो recurring payments है, there is no OTP required after the first transaction, whereas up to 1 lakh rupees, no OTP is required for subscriptions like mutual funds, insurance premiums or credit card bills. ये सब के लिए there is no OTP required again. ठीक है. So do remember this. National Common Mobility Card NCMC 2019. So one nation one card model पे है ये. It was developed by Ministry of Housing and Urban Affairs with NPCI, Bharat Electronics Limited and banks. Components क्या क्या है one nation one card model के? First of all we have the NCMC card, which stands for National Common Mobility Card. ठीक है. And it is issued by banks. It can either be a debit card or credit or prepaid. It is used for metro, buses, trains, tolls, parking and retail shopping as well. फिर we also have a स्वीकार card. स्वीकार card is primarily for automatic fare collection system for seamless travel. ठीक है. और स्वागत करके भी एक होता है, automated gates at railways और bus station for smooth entry. ठीक है. तो स्वागत से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि गेट की बात हो रही है कहीं पे, है ना. अम, ये गेट की बात हो रही है, स्वागत. यहाँ पे गेट पे वेलकम लिखा है. सो यू कैन विजुलाइज दिस प्रॉपरली. स्वीकार, स्वीकार मतलब एक्सेप्ट करना. सो इट इज़ एन ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम फॉर सीमलेस ट्रांसफ़र. ठीक है. वंस यू पे द फेयर, तभी आपको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ट्रैवल करने के लिए, है ना. वैसे करके आप लर्न कर सकते हैं. वंस यू पे द फेयर, only then will you be accepted. फिर NCMC कार्ड को कैसे, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, वो तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा. द नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. नेक्स्ट वी लुक एट SBI's नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड 2023. So it is available at SBI with a minimum payment of rupees 100. Um, hmm. It can be used for metro, buses, water, ferries, and parking. It is also valid for shopping, e-commerce, and ATM withdrawals. It is based upon the National Common Mobility Card technology itself. ठीक है. तो similar चीज़ है. This is not very important. Do remember the limit, minimum payment limit, that is 100 rupees. तो
100 रुपये में आप घूम फिर के आ सकते हैं, तो ऐसे करके लर्न कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है फास्टैग फॉर पेइंग टोल फीस एट हाईवेज। सो फास्टैग्स आपको पता होगा, दे आर जनरली प्रेजेंट ऑन कार्स व्हीकल्स। तो वंस यू पास थ्रू द टोल बूथ, ये अगर सपोज टोल बूथ है और ये आपकी कार है, यहाँ पे आपके जो विंड स्क्रीन है उस पर एक फास्टैग लगा रहेगा एंड यू हैव टू पीरियोडिकली रिचार्ज इट विद सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। सो वंस यू pass through this toll booth, it will get automatically deducted. The toll amount will get automatically deducted and you won't have to stop the car and pay the toll, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वही फ़ायदा तो ये है, इट स्मूदन्स द इंटायर सिस्टम, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लाइंस क्यूज़ में नहीं लगना पड़ेगा व्हीकल्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट, what technology does it use? It uses RFID, that is रेडियो फ्रीक्वेंसी, RFID टेक्नोलॉजी यूज़ करता है ये, है ना। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो इस पे भी देयर वाज, आई थिंक देयर वाज सम क्वेश्चन इन यूपीएससी के RFID टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। सो द आंसर फॉर दिस विल बी RFID टेक्नोलॉजी, ठीक है। So we'll just go through this once. Fast tags are prepaid rechargeable tags for automatic toll collection using RFID technology. They are launched by NHAI in 2017 with mobile apps like My FastTag and FastTag Partner. So these are prepaid that you should be knowing, है ना? And they are developed by NPCI under the National Electronic Toll Collection System, where users have to load money into the mobile app, activate the RFID tag, and tolls are automatically deducted when passing through highway tolls. Benefit क्या है? वही faster traffic movement and tracking of stolen cars, and it is mandatory for all vehicles passing through tolls since 2021. A vehicle without fast tags usually face higher toll fees, ठीक है। So it is beneficial for you to use a fast tag. फिर है MDR का मतलब क्या होता है? MDR बेसिकली स्टैंड्स फॉर मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। सो मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज़ द फी दैट मर्चेंट्स पे टू देयर एक्वायरर बैंक्स फॉर ईच क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन। सो मतलब आई विल जस्ट टेल यू इट via a diagram. So for example, this is a shopkeeper. शॉपकीपर को ही मर्चेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कस्टमर आया एंड ही बॉट सम आइटम, ठीक है। सो द कस्टमर विल बी पेइंग वाया पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन होती है ना, उसके थ्रू उसने पेमेंट करा। सो वंस द कस्टमर मेक्स अ पेमेंट, द सम अमाउंट ऑफ दैट पेमेंट विल हैव टू बी गिवन टू द बैंक और द वही पेमेंट गेटवे वाया द मर्चेंट एज मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो ये जो मर्चेंट या ट्रेडर है उसको पेमेंट करना पड़ता है ये अपने इनकम में से फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, कार्ड ट्रांजैक्शन। वही दिया है, MDR इज द फी मर्चेंट्स पे टू देयर एक्वायरर बैंक्स फॉर ईच क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन। MDR इज शेयर्ड बिटवीन द कार्ड इशूइंग बैंक। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस किस के बीच में शेयर होता है? इट इज़ शेयर्ड बिटवीन द कार्ड इशूइंग बैंक, मर्चेंट्स एक्वायरिंग बैंक एंड द पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर, ठीक है। तो इनका जो कार्ड का बैंक रहेगा वो वाला रहेगा, प्लस इनका जो बैंक अकाउंट है वो वाला बैंक, एंड जो भी पेमेंट गेटवे यूज़ किया है जैसे वीज़ा, मैस्ट्रो, ऑल ऑफ दोज, ठीक है। इन तीनों के बीच में दैट अमाउंट, दैट MDR विल बी डिवाइडेड, ठीक है। सो MDR बेसिकली रिड्यूसेस द मर्चेंट्स प्रॉफिट मार्जिन्स, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने पेमेंट किया उसमें से ही हैज़ टू गिव सर्टन अमाउंट टू the as MDR, ठीक है। So that is why it reduces the merchant's profit margins and therefore it discourages the adoption of POS terminals, मतलब point of sales terminals को discourage करता है adoption, thus hindering digital economy. So steps taken to address this problem, RBI in 2017 had imposed ceilings on MDR fees
thus limiting them to a percentage of the transaction amount. ठीक है, ये बस इसमें इतना ही पता होना चाहिए, एमडीआर का फुल फॉर्म, एंड दैट्स इट। ये भी पता होना चाहिए कि whom is it shared amongst, तो तीनों, कस्टमर का जो बैंक है कार्ड इशूइंग बैंक, देन मर्चेंट्स एक्वायरिंग बैंक एंड पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर। Now we'll be looking at interchange fee by NPCI. The first topic in this is ATM and its types. So ATM का full form क्या होता है? Automated teller machine. Again the full form will be important. ठीक है, इसको कई लोग एनी टाइम मनी भी बोलते हैं, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ दिस इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। Then it enables customers to withdraw money or check balances without visiting a bank branch. देखो मशीन पड़ी होती है एटीएम में, सो उससे आपको लर्न हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। You know how it works, so you do not have to visit a bank branch and you can withdraw money or check balances. ATM network, basically the ATM network operates on national financial switches, मतलब NPCI's national financial switch technology. Again this is a previous year question, ठीक है, 2018 का है if I am not wrong। उसमें ये वाला सवाल आया था कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच किस ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्म किया, तो द आंसर फॉर दिस वाज आई थिंक एनपीसीआई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, इट वाज ऑन एनएफएस। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस नेशनल फाइनेंशियल स्विच। इसको लर्न कैसे करेंगे, आपने देखा होगा एटीएम पे देयर आर अ लॉट ऑफ स्विचेस देयर, मतलब बटन्स होते हैं काफ़ी सारे एटीएम मशीन पे, है ना, उससे लर्न कर लो स्विच। स्विच मतलब बटन। कई बार टच स्क्रीन भी होता है, अदर टाइम्स इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ बटन्स। ठीक है, next is type of ATMs. So there are primarily three types of ATMs. We have bank label ATMs which are owned and operated primarily by the banks. Then we have brown label ATMs and the last one is white label ATMs. ठीक है, so bank label ATMs वही बैंक ऑपरेट कर रहा है। Then brown label ATMs, they are owned by the bank but outsourced for operations। ठीक है, किसी और कंपनी को आउटसोर्स करा हुआ है, दैट इज़ नोन एज अ ब्राउन लेबल एटीएम। तो यहाँ पे आउटसोर्स होता है, ये बैंक ही ऑपरेट करती है। एंड वाइट लेबल है, वो बिल्कुल ही नॉन बैंक एंटिटी रहेगा, दैट विल बी ओनिंग एज वेल एज ऑपरेटिंग इट। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या हैं, मुथूट फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशंस, प्रिज्म, इन सब के जो भी एटीएम्स है ना, these are white label ATMs and they are owned as well as operated by non-banking entities। ठीक है, then we have micro ATM and bank mitra। माइक्रो एटीएम में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन रिमोट एरियाज एंड दे आर ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज। ठीक है, माइक्रो एटीएम मतलब छोटा एटीएम, small areas में and operated by non-banking entities. So this is very important that it is being operated by non-banking entities। ठीक है, then है बैंक मित्र। So bank mitra is basically a person who has been appointed by a bank to go to rural places and प्रोवाइड एटीएम सर्विसेज। मतलब कि एक कोई भी पर्सन रहेगा ये, है ना, इसको बैंक अपॉइंट करती है कि आप जाइए रूरल एरिया में जाइए और वहाँ के जो लोग रहेंगे प्रोवाइड देम विद बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, तो इनका ये काम होता है बैंक मित्र का। So manually records deposits and withdrawals using a handheld device for card transactions and Aadhaar based biometrics। Then technology used क्या हो रहती है इन सब में, Aadhaar enabled payment system, that is the one which supports transactions। So NPCI का AEPS, that is Aadhaar enabled payment system is used here। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर्स टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी। सो नंदन नीलेकानी कमेटी बनी थी
in order to promote cashless economy और डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर स्टडी करने के लिए. ठीक है, सो आरबीआई हैड सेट अप दिस कमिटी ऑन डिजिटल पेमेंट्स. इट इम्पोज्ड, सो बजट मेजर्स क्या प्रपोज कर रहे थे, इट इम्पोज लिमिट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैश ट्रांजैक्शंस. ठीक है, now we'll be doing payment infrastructure development fund which has been formed by RBI. So a fund was set up of around 500 crore rupees. ठीक है, so rupees 250 crore was from RBI and rupees 250 crore were from banks and other card gateway operators. So the main objective of this is to encourage point of sales adoption in rural areas as well as northeast areas. ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन आपको पता होगा, एक शॉप्स में होती है, शॉप्स में मॉल वगैरह में, है ना, ऐसे करके एक मशीन होती है. यू पुट योर कार्ड हियर and put your pin over here and an automatic digital payment can be done. ठीक है, so that is a point of sales machine. So primarily the payment infrastructure development fund is a fund operated by RBI aimed at promoting POS adoption, and it had started in 2021 and it was extended till December 2025. ठीक है, तो इसमें ये एक तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, द फुल फॉर्म ऑफ PIDF, who it is under, and also the फंड सेटअप, मतलब किसका कितना पैसे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. रिलेटेड स्कीम्स देख लेते हैं एक बार. सो वी हैव PM Swanidhi scheme wherein government provides business loans to street vendors. ठीक है, देन वी हैव PM Vishwakarma wherein government supports artisans with skill training and bank loans. So artisans could be carpenters, potters, blacksmiths, etc. एंड आरबीआई का रोल क्या है, इट ऑफर्स PIDF सब्सिडीज टू दीज बेनिफिशियरीज फॉर पॉइंट ऑफ सेल्स अडॉप्शन. तो ये आप याद रखिएगा. PM स्वानिधि जो स्कीम है, इट प्रोवाइड्स, इट इज़ प्राइमरली फॉर स्ट्रीट वेंडर्स. तो इसको लर्न कैसे करेंगे, स्वानिधि मतलब अपना पैसा, ओन मनी, है ना. और का जो स्वानिधि का है, दैट यू कैन कनेक्ट विद स्ट्रीट वेंडर्स का S. ठीक है, so this is how you could learn this. Then we have PM Vishwakarma scheme, it wherein government supports artisans. So examples of artisans are carpenters, potters, blacksmiths, etc. with skill training and bank loans. So विश्वकर्मा से आपको वही स्किल का पता मतलब यू कैन कनेक्ट स्किल विद विश्वकर्मा. ठीक है, तो वही है, स्किल ट्रेनिंग एंड बैंक लोन्स के लिए स्कीम है ये. नेक्स्ट है RBI's रोल, इट ऑफर्स PIDF सब्सिडीज टू द बेनिफिशरीज फॉर POS अडॉप्शन. तो कॉमन ही है, दीज टू आर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वी लुक एट ग्लोबल मनी ट्रांसफर. So global money transfer can be done via a lot of methods. So we'll first be looking at RuPay cards and their international acceptance. तो रुपे कार्ड्स का पता होगा, रुपे इज़ अ पेमेंट गेटवे एंड इट इज़ इंडियाज़ ओन पेमेंट गेटवे एंड इट इज़ इंडियाज 7th पेमेंट गेटवे एज वेल. वी हैव रेड अबाउट दिस अर्लियर. ठीक है, इसमें RBI enabled इंटरनेशनल रुपे कार्ड यूजेज फॉर ATM विड्रॉल्स एंड शॉपिंग. ठीक है, बस इतना ही है इसमें. एंड इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन मॉरिशस. So this country is important that RuPay cards are acceptable in Mauritius. Learn कैसे करेंगे, Mauritius is quite close to India. Do not confuse it with Maldives. Mauritius में तो we have a lot of we have good relations with Mauritius and we have if I'm not wrong we have a defense base over there as well. ठीक है, तो
यू कैन लर्न दिस। यहाँ पे इंडियन ओशन में ही है मॉरिशस भी, ठीक है। नेक्स्ट है UPI in Sri Lanka, Mauritius, etc. So UPI has been launched in Sri Lanka and Mauritius for tourist payments. UPI is also available in Bhutan, Oman, UAE, South Asian nations, Nepal, and France, and other European nations as well. Okay, so you do not have to learn this because the number of countries has been increasing over time. ठीक है, तो ये बढ़ गए हैं और so do not bother with this. ठीक है, ये वाला आप लर्न कर लीजिएगा कि मॉरिशस में रुपे कार्ड पेमेंट हैज़ बीन इनेबल्ड, इंटरनेशनल रुपे कार्ड यूजेज। नेक्स्ट है यूपीआई एट ग्लोबल, इंडिया, यूएई, एलसीएसएस, यूपीआई आईपीपी लिंकेज। ठीक है, सो इंडिया एंड यूएई हैव एस्टैब्लिश्ड अ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। इट अलाउज पेमेंट्स इन INR and AED, thus bypassing US dollars. ठीक है, सो देर आर एफर्ट्स अंडरवे टू लिंक UPI एंड इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर स्ट्रीमलाइंड LCSs। तो बेसिकली क्या मतलब है इसका, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है। सो हम लोग पहले क्या होता था कि जो हमारे पास INR होता था, इंडियन रुपी, है ना, इसको दिस यूज टू बी कन्वर्टेड टू डॉलर्स, और उसके बाद में इनटू AED। AED इज द करेंसी ऑफ UAE, ठीक है। और उसके बाद में वी यूज टू मेक जो भी ट्रांजैक्शंस वहाँ जाके किसी को करने हैं वो ऐसे करते थे। बट नाउ दिस थिंग इंटर लोकल करेंसी कैन बी यूज फॉर सेटलमेंट्स, ठीक है। सो इट अलाउज पेमेंट्स इन INR एंड AED, दस बाई पासिंग USD। एंड उनका जो हमारा तो UPI होता है ना, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, उन लोगों का होता है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, एंड दे आर ट्राइंग टू लिंक दीज टू इन ऑर्डर टू इंश्योर स्ट्रीमलाइंड LCSs, दैट इज लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे। UAE मतलब दुबई, सो दुबई इज़ क्वाइट क्लोज टू इंडिया एंड देयर इज़ अ वेरी बिग पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस देयर, है ना। तो वैसे ही आप लर्न कर लो कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, UAE के साथ में, बिकॉज वी हैव अ वेरी बिग पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस लिविंग देयर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। UPI एट ग्लोबल प्रोजेक्ट नेक्सस, इंडिया UPI कनेक्ट विद सम एशियन नेशंस, ठीक है। तो बेसिकली UPI हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद फास्ट पेमेंट सिस्टम्स। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, इट कनेक्ट्स इंडियाज UPI विद फास्ट पेमेंट सिस्टम्स ऑफ मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। कोऑर्डिनेटर कौन है इन सब का, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बेसल, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इट enables क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स विद इन 60 सेकेंड्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से कंट्रीज़ के साथ है ये, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। डू रिमेंबर दैट इंडोनेशिया नहीं है। तो यहाँ जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है ना, उसमें से एक तो मलेशिया, और मलेशिया की साइड में ही सिंगापुर है ना। फिर फिलीपींस भी कर रहा है और थाईलैंड भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका MPST, MPST करके लर्न कर लीजिए आप लोग, है ना। MP मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। एंड दीज हैव यू इंटीग्रेशन ऑफ UPI विद फास्ट पेमेंट सिस्टम्स, ठीक है। और इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कैन बी डन विद इन 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो दिस इंटायर न्यूज आइटम इज फैक्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट। देन है फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम्स लाइक स्विफ्ट। रशिया गेट्स बैंड फ्रॉम स्विफ्ट। तो स्विफ्ट के बारे में पता होगा आपको, इट इज़ बेसिकली अ ग्लोबल सिस्टम, है ना। तो स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन।
ठीक है, तो देर आर वेरियस बैंक्स इन द वर्ल्ड, सो दिस इज अ सिस्टम फॉर communication between different banks. ठीक है, it was established in 1973 at Belgium, and it is primarily used for secure messaging in international banking. ठीक है, तो ये सपोज एक बैंक है इंडिया में, if it wants to communicate with some bank of Belgium, say Belgium, है ना, so they'll be using, आप ऐसे इमेजिन करिए कि व्हाट्सएप टाइप का कोई सिस्टम है विच दे यूज़ फॉर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। ठीक है, सो दैट कम्युनिकेशन मैकेनिज्म इज नोन एज स्विफ्ट। ठीक है, सो वो ये है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसी का देर इज एन इंडियन वर्जन एज वेल, इट इज नोन एज SFMS, that is structured financial messaging system. It was developed by TCS for IDRBT, that is RBI's research arm. So TCS आपको पता होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन्होंने डेवलप किया था फॉर IDRBT. It supports NEFT, RTGS and other inter or intra-bank transactions. It is used by banks, NBFCs, brokers, even without direct banking relations. ठीक है, so try to remember both of these are quite important. Swift, it is based at Belgium, है ना, ये भी बहुत important है. Swift मतलब Belgium is a very small country. ठीक है, so उसको हम लोग जल्दी जल्दी swiftly you can visit all places in at Belgium. Because it is quite small. ठीक है, तो ऐसे करके लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट है SFMS के लिए हमको TCS लर्न तो होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम. तो TCS वैसे ही आपको लर्न हो जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. दिस इज़ वेरी कॉमनली नोन कंपनी एंड इट डज परफॉर्म सच ड्यूटीज ओनली, मतलब दे गिव फाइनेंशियल सोल्यूशन, नॉट ओनली फाइनेंशियल सोल्यूशंस, अदर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स. ठीक है, और IDRPT के लिए बनाया था इन्होंने, and it is used by banks, NBFCs, brokers and even without direct banking relations. ठीक है, तो ये both of these articles are important. Now we look at payment system operators. So Payment and Settlement Systems Act 2007, we have already learned about this, है ना. पेमेंट का P looks like 7, वैसे करके हमने लर्न करा था कि P को उल्टा करें तो 7 जैसा दिखेगा. तो पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट कब आया, 2007 में. ठीक है, एंड NPCI कब आ गया था, 2008. ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर दीज डेट्स, these years. Then RBI grants licenses to payment system operators under the Payments and Settlement Systems Act. ठीक है, so types of PSOs and examples देख लेते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल जो अम्ब्रेला एंटिटी है रिटेल पेमेंट्स के लिए वो है NPCI, दैट इज़ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि लाइसेंस कौन ग्रांट करता है, RBI ग्रांट करती है. ठीक है, डू रिमेंबर दिस. फिर है कार्ड पेमेंट एंड गेटवे ऑपरेटर्स, कौन कौन एग्जांपल्स क्या क्या हैं उसके, वही मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे. इन क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल रेमिटेंसेस के लिए कौन से प्लेयर्स होते हैं, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, ये सब आपने सुना होगा. देन वी हैव प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अमेजोन पे, मोबीक्विक, फ़ोन पे. ठीक है, इनमें एक वॉलेट होता है वेर इन यू पुट सम मनी and then later on you can make that you can use that money in the wallet to make transactions, to do transactions. ठीक है, फिर है पेमेंट एग्रीगेटर्स. सो एग्जांपल्स ऑफ दीज आर गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन, रेजर पे एट्सेट्रा. ठीक है, दे हेल्प इन मेकिंग पेमेंट्स. ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स. नेक्स्ट है ATM ऑपरेटर्स और उनके एग्जांपल्स. सो वी हैव बैंक ATMs लाइक
एसबीआई का खुद का एटीएम होगा, दैट इज़ नोन एज अ ब्लू लेबल एटीएम एज वेल। फिर एक होते हैं वाइट लेबल एटीएम्स, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस। White label ATMs are basically owned as well as operated by non-banking entities. So examples of these are Muthoot Finance का एक ATM होता है, it is a white label ATM. Then we have Tata, SR, SREI, ठीक है, all of these are white label ATMs. Then a financial market infrastructure provider. So an example of this will be Clearing Corporation of India. So it provides digital infrastructure in share bond and forex deals, ठीक है। तो ये आप याद रखना, दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बस ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वही कार्ड पेमेंट गेटवेज होते हैं। देन वी हैव इंटरनेशनल रेमिटेंसेस के लिए, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस के लिए देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस, पीपीआईज होते हैं, और पेमेंट एग्रीगेटर्स भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट सिस्टम्स। सो अभी कौन सी अम्ब्रेला एंटिटी है फॉर रिटेल पेमेंट्स, इट इज़ NPCI, ठीक है। सो देर इज़ ओनली अ सिंगल entity for retail payments, there is no other entity which competes with this. So that is why 2019 में a proposal was brought in wherein a new umbrella entity will be allowed to come up. So NPCI is the sole umbrella entity for retail payments in India. It operates रुपे, IMPS, UPI, भीम, NFS, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू NPCI, ठीक है। सो दैट इज़ वाई RBI केम अप विद अ प्रपोजल and invited Indian companies to apply for a new umbrella entity license to compete with NPCI subject to technical eligibility, ठीक है। तो बस इतना ही है, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाने का कर रहे हैं वो लोग इन ऑर्डर टू कम्पीट विद NPCI। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट रेगुलेटरी बॉडीज। सो उसके बारे में देख लेते हैं। सो वी हैव डिजिटल ट्रांजैक्शंस ओम्बड्समैन, 2019 में इनको फॉर्म किया था। सीनियर RBI ऑफिशियल्स रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स अप टू ₹20 lakhs. So the limit is quite important, ठीक है। एंड सीनियर RBI ऑफिशियल्स आर द वन हु डू दिस, ठीक है। एंड दीज आर, हाँ, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए होता है ये। दे कैन ऑर्डर फिक्सेस एंड कॉम्पनसेशन अप टू ₹1 lakh, ठीक है। फॉर कंप्लेंट्स अबव ₹20 lakhs द विक्टिम्स मस्ट अप्रोच द कोर्ट्स, ठीक है। सो अगेन दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। डिजिटल ट्रांजैक्शंस ओम्बड्समैन कौन होते हैं इसमें, RBI ऑफिशियल्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। एंड दे विल बी doing transaction, they'll be looking at transaction or complaints up to ₹20 lakhs. They can order a compensation of up to ₹1 lakh, and वही above 20 lakhs के जो भी complaints दे रहेंगे, the victims have to approach the courts for the same, ठीक है। इसमें लर्न कैसे करेंगे हम लोग, 20 lakhs ना, तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2019, है ना। तो उसी से आप लर्न कर लो, 2020 से 20 lakhs, सो दिस इज द लिमिट, ठीक है। और कॉम्पनसेशन कितना है, 1 lakh, दैट इज़ 1:20 के रेशियो में देख लो। इवन इफ 20 lakh का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कॉम्पनसेशन कैन गो ओनली अप टू 1 lakh rupees, ठीक है। नेक्स्ट है BPSS. It is a statutory body. It was established in 2007 to regulate and supervise payment systems. All payment service providers must register with RBI's BPSS, ठीक है। तो क्या है ये, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है BPSS, 2007 में इस्टेब्लिश किया है टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज पेमेंट सिस्टम्स। RBI का बॉडी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि BPSS किसके अंडर आता है। सो द आंसर फॉर दैट विल बी RBI।
इसका फुल फॉर्म है बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। ठीक है, द फुल फॉर्म इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आई जस्ट राइट इट हियर, BPSS। फिर ठीक है, ये देख लिया BPSS का फुल फॉर्म कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2007 में। सो लिंक इट विद पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, दैट वाज आल्सो इन 2007, तो वैसे लिंक हो जाएगा आपको, दैट पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट वाज आल्सो in 2007 and this was also established in 2007। ठीक है, और कौन करता है, RBI के अंडर आता है ये। फिर है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, द गवर्नमेंट हैड proposed this body but it has not been set up and yet and is still considered, मतलब वही, it has not been set up, तो प्रीलिम्स के लिए दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेमेंट रेगुलेटरी बॉडी, however these are old notes। ठीक है, अभी रिसेंटली ओनली PRB हैज़ बीन मेड, 2025 मई में इसको बनाया गया है, रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर, है ना। सो वील रीड अबाउट दैट इन द करंट अफेयर्स सेशंस विच आई विल बी टेकिंग। ठीक है, तो PRB वैसे इस अब बन गया है, 2025 में बन गया है वो। सो वील रीड अबाउट दैट लेटर ऑन। नेक्स्ट देख लेते हैं। Next, we'll be looking at digital payment related indices, competitions or reports by RBI. So, RBI's payment and settlement systems in India Vision 2019 to 2021. It is basically a vision document outlining the plans and goals for providing payments and settlement systems in India. So, this is not very important. Okay? Next है Digital Payments Index of RBI. It measures the level of digital payments in various areas across India. So again, this is important. RBI's Financial Inclusion Index, it assesses whether all individuals have access to banking, loans, etc. So the only thing important here is वो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन निकालता है, तो दी ऑप्शंस में भी RBI, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऐसे करके दे में बी गिविंग यू ऑप्शंस, सो यू शुड बी नोइंग कि इट इज़ RBI इटसेल्फ। ठीक है, एंड डू नॉट कंफ्यूज इट विद नीति आयोग बिकॉज नीति आयोग ऑल्सो कैरीज आउट अ लॉट ऑफ सच इंडिसेस। ठीक है, देन है RBI's हार्बिंजर hackathon competition. It is an innovation competition in digital payments with the 2024 edition focusing on two themes. So the themes of the 2024 edition are not important because these notes are 2024 के notes. The recent one will be important which we'll be doing in the current affairs session. ठीक है, तो ये भी बस इसमें भी इतना इम्पोर्टेंट है कि हार्बिंजर हैकेथॉन कौन कराता है, RBI. So be very careful. These are not being done by नीति आयोग but rather by RBI itself। ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट्स भी RBI, फाइनेंशियल इंक्लूजन और हार्बिंजर हैकेथॉन भी RBI करा रहा है।
Now we'll be reading about cryptocurrency and blockchain technology. So, cryptocurrency basically refers to a digital or virtual currency which has been created and stored using blockchain technology. And blockchain is a decentralized, secured, distributed ledger that records transactions permanently. And it is used for cryptocurrencies but can store other data as well. ओरिजिन क्या था 2007 में यूएसए सबप्राइम crisis had led to distrust in fiat money and banks due to high fees, MDR, and interoperability issues. That is why a person known as Satoshi Nakamoto in 2009 anonymously launched blockchain. ठीक है, so the name is important, Satoshi Nakamoto. The year is also important and वो तो पता ही है. टोटल सप्लाई कितना है ब्लॉकचेन्स का 21 मिलियन बिटकॉइंस. बिटकॉइन है मतलब, हाँ ठीक है. वेर इन वन बिटकॉइन इज 10 to the power 8 satoshis. Satoshi is the smallest unit. ठीक है. B looks like 8. That is how you can remember कि 10 to the power 8 satoshis is one bitcoin. Then we have other cryptocurrencies as well, such as Ethereum, Litecoin, Digicoin, Lakshmi Coin, Ripple, Dogecoin, etc. ठीक है. So इसका बस आपको ये this phrase is very important, that blockchain is a decentralized, secured, distributed ledger that records transactions permanently, and it is used for cryptocurrencies but can store other data as well. ठीक है. तो इसको आप एक रजिस्टर की तरह देख सकते हैं कि ये एक रजिस्टर है, उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस है वो कोई लिखते जा रहा है. However, this register and its data is decentralized. Therefore, it is not present at a central place, but rather it is quite decentralized. ठीक है. तो यही है decentralized, secure, distributed ledger that records transactions permanently. ठीक है. Next, we look at hot wallet versus cold wallet. Crypto के there are a lot of digital wallets similar to a Paytm wallet but for storing Bitcoin and other cryptocurrencies. So types of wallets कौन से होते हैं. एक तो hot wallet होता है. Hot wallet is something which is online. ठीक है. So it is connected to the internet. Example online apps etc. Then we also have cold wallets which are offline, used for offline storage, for example USB pen drive or something like that. ठीक है. So both of these methods can be used to store cryptocurrency. Cryptocurrency banned in other nations. So there are certain countries wherein cryptocurrencies have been banned. So examples of these are Nepal, Algeria, Egypt, Morocco, Turkey, Iran, etc. ठीक है. So Bitcoin is illegal in these countries. और फिर चाइना ने क्या बैन किया है. बैंक्स हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट्स in China. So that is why Bitcoin prices have reduced by 30% following the crackdown by certain governments. Now, apart from this, cryptocurrency is also a legal tender in some countries. Therefore, कुछ countries ने तो ban कर दिया है, but certain other countries have uh, accepted it as a legal tender. So जैसे वेनेजुएला में अभी, however this news is old, but still we'll just go through this. Venezuela में there are two legal tenders. First of all, we have Bolivar, which is the fiat currency, and also Petro, which is a government issued cryptocurrency. So this is important. ठीक है. Bolivar is the fiat currency and Petro आपको पता ही होगा कि वेनेजुएला इज एन ऑयल रिच कंट्री, तो उससे आप लिंक कर लो कि पेट्रो इज अ गवर्नमेंट इशूड क्रिप्टोकरेंसी. ठीक है. पेट्रोल से. ठीक है. देन मार्शल आइलैंड्स जिसका कैपिटल है माजूरो, इट हैज़ टू लीगल टेंडर्स. वन इज US dollar and the other one is sovereign.
ठीक है, sovereign is a cryptocurrency. So, Marshall Islands happens to be the first country to launch a sovereign cryptocurrency. That is something which has been launched by the government itself. Then El Salvador है, उसमें there are two legal tenders. One again US dollar and Bitcoin also. ठीक है, so it is the first country to adopt Bitcoin as a legal tender. ठीक है, तो इसको अभी we'll have to learn this properly. वेनेजुएला का तो मैंने करा दिया था कि इट इज़ एन ऑयल रिच कंट्री, देयरफॉर ऑयल के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे दे हैव इशूड द क्रिप्टो करेंसी. मार्शल आइलैंड्स में सॉवरेन. सो आइलैंड्स बहुत सारे होते हैं, है ना, इसको बस लर्न करने के लिए आई एम गिविंग अ लर्निंग एड. सो इन आइलैंड्स में विच इज़ द सॉवरेन आइलैंड, सबसे विच आइलैंड होल्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अमाउंट ऑफ पावर, है ना, वैसे करके लर्न कर लो कि सॉवरेन आइलैंड, तो सॉवरेन इज देयर इज द नेम ऑफ देयर क्रिप्टो करेंसी. फिर है एल साल्वाडोर. एल साल्वाडोर को किस चीज़ में सैल्वेशन मिली? बिटकॉइन में. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन लिंक एंड लर्न दीज. Now we look at how cryptocurrency is permitted in certain other nations or groups. So UNICEF में I'll tell you about UNICEF. UNICEF का full form क्या है? United Nations International Children's Emergency Fund. So the headquarters is at New York, and वही बस यूनिसेफ के बारे में दिया है. So it is the first United Nation organization to accept cryptocurrency donations via a crypto fund. ठीक है, सो दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. यूनिसेफ देखो चिल्ड्रन से रिलेटेड फंड है ये, है ना. सो हाउ विल यू लर्न दिस? चिल्ड्रंस आर न्यू एंड दे आर विलिंग टू टेक अप न्यू थिंग्स. That is why UNICEF is the first one to accept cryptocurrency donations. ठीक है, फिर वर्ल्ड बैंक का देख लेते हैं. In 2018 it launched the world's first blockchain bond called Bondi in Australia. ठीक है, सो बेनिफिट्स क्या है इसके? लोअर कॉस्ट्स हैं, डेटाबेस एंड पेपर वर्क इज ऑल्सो क्वाइट लो. ठीक है, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस. सो इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड called Bondi in Australia. Next है World Economic Forum. So it is basically an NGO based in Cologne, Geneva, Switzerland. ये पता ही होगा आपको. Every year there is a summit which happens at World Economic Forum. So this is a very famous organization. ठीक है, so they have released the blockchain bill of rights, focusing upon accountability, transparency, data privacy and protection. ठीक है, तो कहाँ पे ये? कॉलोनी, स्विट्ज़रलैंड. इसको ऐसे लर्न कर लो कि कोलोन, कोलोन मतलब को पता होगा परफ्यूम को बोलते हैं. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बहुत रिच लोग जाते हैं, है ना. तो रिच लोग ऐसे जस्ट इमेजिन दैट दे पुट अ लॉट ऑफ कोलोन एंड देन गो टू जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड टू अटेंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, सो next we'll move to cryptocurrency global regulations. Next is cryptocurrency and the global regulations regarding it. So first क्या देख रहे हैं हम लोग? Global regulations, MiCA regulation by European Union. So European Union's markets in crypto regulation, MiCA regulation का full form है MICA, markets in crypto assets regulation. So it is primarily aimed at protecting investors from वही क्रिप्टो स्कैम्स और फ्रॉड्स. ठीक है, और इसका फोकस एरिया क्या है? टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. एक्सक्लूजन क्या क्या है? इट डज नॉट include सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी and it also does not regulate non fungible tokens. ठीक है, तो इसमें this is entirely important, the whole thing is quite important.
सबसे पहले तो ये एक्सक्लूजन्स का पे क्वेश्चन आ सकता है कि आर एन एफ टी इंक्लूडेड इन एम आई सी ए, तो वो दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को क्यों नहीं रेगुलेट कर रहा है? बिकॉज इट इज़ being regulated by a central authority। ठीक है, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी रेगुलेशन। वेयर एज एन एफ टी इसको क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज maybe it is a different skill set altogether, so that is why they might have not included that in MECA regulation। ठीक है, सो MECA जो रेगुलेशन है, मार्केट्स एंड क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन, it is primarily limited to cryptocurrency only। नेक्स्ट इज ग्लोबल रेगुलेशंस में CARF फ्रेमवर्क बाय OECD। अभी ये भी पूछ सकते हैं कि मीका रेगुलेशन किसका है? सो इट इज़ यूरोपियन यूनियन, है ना। सो ऑप्शंस क्या देंगे? यूरोपियन यूनियन, OECD, आसियान, ऐसे करके दे देंगे। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वन। सो द आंसर फॉर दिस इज यूरोपियन यूनियन। यू शुड बी नोइंग दिस। ठीक है, मीका मीका देखो, इसको लर्न कैसे करना है। मीका एक मेटल का नाम होता है ना, metal, and it is primarily used in makeup products। मेटल नहीं है, मिनरल है। वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक, है ना। मिनरल है। मेकअप प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। सो आपने देखा होगा जो यूरोपियन लेडीज़ होते हैं, दे यूज़ अ लॉट ऑफ मेकअप। बस ऐसे ही लर्न करने के लिए बता रही हूँ मैं। यूज़ अ लॉट ऑफ मेकअप। ठीक है, तो ऐसे करके यू कैन लर्न दिस। ठीक है, सो मेकअप, makeup products, and Europe में there is a lot of use of makeup products। This is a learning aid। Next है global regulations, CARF framework by OECD। So इसका full form क्या है? CARF framework, crypto asset reporting framework, OECD के अंदर आता है ये। So it is similar to European Union's MiCA rules, and it is aimed at regulating crypto assets to prevent fraud, ठीक है, एंड टैक्स इवेजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल। सो बस इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंड वही क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसको लर्न करने के लिए देखो, ये वेट अ सेकेंड, OECD का पता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है ना। इसमें काफ़ी सारे रिच कंट्रीज़ हैं। रिच कंट्रीज़ आर अ मेंबर, अदर मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो रिच लोग रहते हैं उनके पास में कार होती है। ये बस लर्न करने के लिए एक ट्रिक है ना। सो दिस इज़ अ लर्निंग एड। तो उन लोगों के पास कार होती है, सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर कि OECD इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस रिच कंट्रीज। सो दे यूजुअली हैव कार्स, तो वैसे करके यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन्स। सो स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज विच आर बैक्ड बाय रिजर्व एसेट्स लाइक गोल्ड, USD और फिएट करेंसी। ठीक है, सो क्रिप्टो करेंसी है बट दे आर सर्टन फिजिकल बैकिंग, मतलब कोई भी फिजिकल एसेट रहेगा, रिजर्व एसेट रहेगा, जैसे कि गोल्ड। सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2 units of a cryptocurrency that will have corresponding gold being stored somewhere। ठीक है, तो दैट इज़ वाई दे आर रिलेटिवली स्टेबल, बिकॉज दे आर बैक्ड बाय सम रिजर्व एसेट। ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फेसबुक्स, लिब्रा, टेथर, बेस कॉइन, ट्रू USD। ठीक है, इसको लर्न करना विल बी ईजी। देखो नाम ही इनका ऐसा है। लिब्रा तो आई डोंट थिंक इट हैज़ कम इन टू
existence till now, but ये जैसे tether है. Tether मतलब anchored, something which is anchored your tied to something, है ना. तो tied to something में वही हो जाएगा कि it is quite stable या it is tied to some reserve asset. ठीक है. बेस कॉइन मतलब वही जिसके पास बेस हो, मतलब स्टेबल हो जो. एंड ट्रू यूएसडी मतलब यूएस डॉलर बैक्ड रहेगा कुछ. ठीक है. सो इट दिस इज इजी टू रिमेंबर. द एग्जांपल्स आर इजी टू रिमेंबर. चैलेंजेस क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, possibility of financial frauds. So that is why France, European Union, and G20 have opposed stablecoins due to these risks. ठीक है. So even though they are stablecoins, but still they have been opposed by France, European Union, as well as G20. Next, we'll be looking at the World Coin Project, which was from 2021 to 22. The World Coin Project was a project by Sam Altman, वो जो चैट जीपीटी के सीईओ हैं, and he uses an orb machine to scan users' iris and get a unique ID using blockchain technology and get a world coin cryptocurrency as a gift. So this is not important. These details are not at all important. ठीक है. बस इसमें you should be knowing कि world coin project जो भी है, who was heading it. So it is by Sam Altman. ठीक है. तो how will you learn this? देखो, Sam Altman is an innovator. ठीक है. He had helped the formation of chat gpt वगैरह, है ना. तो that is why he is generally involved in a lot of projects. ठीक है. तो वैसे करके लर्न कर लो कि सैम ऑल्टमैन वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट. सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो हेड करते हैं बिकॉज ही इज़ क्वाइट इनोवेटिव. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टेबल कॉइन्स. सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, बट एक और बार देख लेते हैं. चैलेंजेस में देख लिया था, but still we'll have a look at these again. Pros में आएगा, if the government accepts stable coins as valid financial instruments, it can simplify transactions across the border, improve financial inclusion and reduce time and effort in availing financial services. Cons क्या है? वही regulatory challenges रहेंगे. Apart from that, risk of fraud, money laundering, terror financing, ये सब. Lack of consumer protection, financial instability. ठीक है. So basically these are not important from the prelims point of view. ठीक है. Mains maybe I doubt if they will be asking such a question, but just have a look if you want. ठीक है. Next we'll be looking at central bank digital currency. So central bank digital currency is basically a type of cryptocurrency which is being issued by central banks or any other central authority. जैसे गवर्नमेंट कोई इशू करती है उसको बोलेंगे हम लोग. Now RBI has also released, matlab they are planning and released it on pilot terms, a central bank digital currency. ठीक है. उसका नाम है ई रूपी. ठीक है. और डू रिमेंबर द स्पेलिंग ऑफ दिस. उसका नाम है ई रूपी. वेट अ सेकेंड, हाँ डबल पी नहीं है. ठीक है. एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ई रूपी which has been which is an initiative of NPCI. ठीक है. तो आप ये याद रखना, वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू लेटर ऑन, बट डू रिमेंबर दिस कि ई रूपी और ई रूपी में देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है. तो अभी हम लोग देख लेते हैं CBDC होलसेल वर्सेस रिटेल. सो RBI हैज़ डन वेरियस ट्रायल्स एंड पायलट स्टडीज़. तो टाइप क्या है, जो टाइप ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो ई रूपी है, वो किस टाइप का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी it can be used for person to person as well as person to merchant transactions. ठीक है. दोनों कर सकते हैं इससे. सो रिटेल और पर्सन टू पर्सन जो भी करना है वो कर सकते हैं.
Then wholesale terms के लिए it can also for wholesale purposes it can also be used for secondary market transactions in government securities, interbank borrowings for short term loans and cross border payments. ठीक है. So this is not very important. There is no as such fact which you need to remember here. बस पता होना चाहिए कि दो टाइप के हैं, एक तो है CBDC रिटेल एंड द अदर वन इज CBDC होलसेल. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि टाइप्स क्या क्या हैं. देर आर टू टाइप्स. सो वी हैव फर्स्ट वन, it is the retail version, and the second one is wholesale. ठीक है. Remember this properly. That is the only thing which is important from this paragraph. Next, we'll look at e-rupee Indian CBDC as a digital token of legal tender. तो इंडियन CBDC जो है उसके की पॉइंट्स क्या है. इट इज़ प्राइमरली बेस्ड अपॉन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अपार्ट फ्रॉम दैट, डिजिटल टोकन रिप्रेजेंटिंग लीगल टेंडर है वो. ठीक है. सो इट इज़ अ लीगल टेंडर. अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन इट इज़ क्रिएटेड अंडर RBI Act of 1935, 1934. ठीक है. इट was issued by RBI on behalf of the government of India. एंड वही सिमिलर है जैसे करेंसी नोट्स में होता है ना कि RBI एज अ लाइबिलिटी इवन दो द ultimate liability is on the government of India. Similar thing is here. RBI's liability is similar to a cash note. ठीक है. Then it is distributed through banks and there's no savings interest present on it, just like cash does not have any savings interest. जैसे कि if you have cash you won't be getting any interest, पर अगर if you have put money in the bank then you will be getting some interest rate on that. ठीक है. तो ऐसा केस इसमें भी नहीं है. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हैज़ नो सेविंग्स इंटरेस्ट रेट. ठीक है. अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट and it provides trust, safety, and final settlement just like physical cash. So these the portion which I have highlighted with blue ink, that is important. So it is primarily based upon blockchain technology. It is a legal tender. RBI Act 1934 के अंदर आता है ये. And RBI is issuing this on behalf of the government. And a very important point is there is no savings interest which you will be getting on this. ठीक है. नेक्स्ट है e-rupee settlement finality. So settlement finality is a very key important key concept. So once a transaction is completed using cash or central bank digital currency, it cannot be reversed or cancelled. ठीक है. इसी का मतलब होता है सेटलमेंट फाइनलिटी. मतलब दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी द टर्म. सेटलमेंट हो मतलब एक बार सेटलमेंट कर लिया दैट विल बी फाइनल. ठीक है. यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि वंस अ ट्रांजैक्शन इज डन, the once it is completed using cash or CBDC, it cannot be reversed or cancelled. ठीक है. क्या लिखा है. क्रेडिट कार्ड्स एंड चेक्स के केसेस में क्या होता है. द पेमेंट कैन बी ब्लॉक्ड और रिवर्स्ड विद इन अ टाइम लिमिट बाय contacting the bank, meaning they do not have instant सेटलमेंट फाइनलिटी. वेयर एज इन केस ऑफ कैश, कैश में मतलब बस आप दे दोगे किसी दूसरे के हाथ में, सो फाइनल हो गया है ना. ऐसे मतलब formally you cannot ask them for back. The money cannot be asked back. मतलब ऐसे नहीं कि उसको बोल रहे हो वापस दो. ठीक है. सो इट cannot be reversed. Whereas in the case of credit cards and checks, the payment can be either blocked or reversed. ठीक है. So both cash और CBDC में this cannot happen. So again this is very important. Settlement finality का जो concept है that is very important. Next है e-rupee Indian CBDC has no interest earning. So we just read about that earlier also. CBDC का it can be stored in a separate digital wallet which has been created by banks. However, it does not earn any interest rate. ठीक है. Unlike bank deposits.
ठीक है, सो जैसे कैश में यू डोंट अर्न इंटरेस्ट, कैश विच यू होल्ड इन विद योर सेल्फ, यू डोंट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन दैट. Similarly, CBDC also you cannot earn any interest on it. ठीक है, सो दैट इज ऑल विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम हियर कि इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, एंड देयर इज अ सेपरेट डिजिटल वॉलेट क्रिएटेड बाय बैंक्स वेयर इन इट कैन बी स्टोर्ड. नेक्स्ट है प्रोग्रामेबिलिटी एंड ऑफलाइन फीचर्स ऑफ CBDC, दैट इज ई रूपी, है ना. तो क्या है करंट जो प्रपोज, ये हमने अभी पढ़ लिया था वैसे, कि CBDC रिटेल होता है और एक CBDC होलसेल होता है. फॉर इन CBDC रिटेल वी कैन कैरी आउट पर्सन टू पर्सन और person to merchant transactions, whereas in CBDC wholesale we can carry out secondary market transactions in government securities, interbank borrowing for short term loans and cross border payments as well. ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी हो जाते हैं उससे, है ना. दीज ऑल थ्री आर इम्पोर्टेंट हियर, आई हाईलाइट इट. ठीक है, तो ये यहाँ पे वही दिया है, और इसमें दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस ऑफलाइन फंक्शनैलिटी एज वेल, हाउएवर इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल टिल नाउ. And the primary reason why they are trying to introduce offline functionality is that जो पुअर एरियाज़ हैं, हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, दे हैव वेरी लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी. दैट इज़ वाई दे आर ट्राइंग टू introduce an offline functionality as well. Now we look at the difference between e-rupee and e-rupee. ठीक है, so देखो, first of all e-rupee is, the founder is RBI. ठीक है, they are the ones who are helming this project, whereas e-rupee जो RUPI है वो NPCIL के अंडर आता है. Then e-rupee is CBDC, that is Central Bank Digital Currency, whereas जो e-rupee है वो basically एक गिफ्ट कार्ड जैसा है. ठीक है, एंड इतना कुछ वो नहीं है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं है, टोकन जैसा है, वो टोकन्स मिलते हैं ना उसके जैसा है, और अ गिफ्ट कार्ड. And then e-rupee is a legal tender, whereas e-rupee is not. ठीक है, so how will you remember this? This is simple. E-rupee, rupee का असली spelling is this. ठीक है, so this will be the official one. RBI का CBDC will be the one having the correct spelling, whereas ये कुछ भी spelling लिखा है, that is under NPCI. ठीक है, so learn it via the spelling. जो सही spelling है रुपये की, that is RBI's CBDC, whereas the other one is NPCI's. It is basically a gift card. ठीक है, now we'll be looking at fungibility. Fungibility को एक synonym से हम replace कर लेते हैं for making understanding easy. Divisibility से आप इसको लिंक कर सकते हैं. Fungibility मतलब divisibility. ठीक है, so fungibility in economics refers to the property of an asset where individual units are interchangeable with the others of the same type. For example, अगर gold, if I have 1 kilogram of gold, 1 kg gold, then it is fungible. It is very fungible या divisible, because even if मैं इसके क्या कर देती हूँ, आई मेक 10, आई डिवाइडेड इट, नहीं चलो 10 तो नहीं, 2 कर देते हैं. ठीक है, तो 2 500 ग्राम का भी अगर मैं कर लूँगी गोल्ड को, even then the entire amount of both of these will be the same as that of 1 kg gold. ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इनका वैल्यू विल बी सेम एज 1 kilo गोल्ड. हाउएवर इफ़ यू लुक एट डायमंड, डायमंड का अगर वो उनका एक तो साइज़ के बेसिस पे भी होता है और क्लैरिटी के बेसिस पे भी होता है. सो इफ़ फॉर एग्जांपल you have a 1 carat diamond and you divide it into 2 diamonds of 0.5 carat or something. I'm not sure about the terms, मतलब units here, but still अगर ऐसे कर दिया ना, तो इन दोनों का जो भी वैल्यू रहेगा, इट विल बी वे लेसर देन दैट ऑफ 1 carat डायमंड. ठीक है, सो डायमंड्स आर नॉट फंजिबल. ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि फंजिबिलिटी मीन्स दैट इफ द
asset is divided into individual units, then it can be interchangeable with the original one. ठीक है, मतलब वैल्यू सेम रहनी चाहिए. ठीक है, सेम वैल्यू एंड फंक्शन. सो एग्जाम्पल, मनी इज ऑल्सो एक्सट्रीमली फंजिबल. तो 100 रुपी नोट इज इंटरचेंजेबल विद another 100 रुपी नोट as they hold the same value, whereas ऑयल के केस में भी सेम रहता है. 1 barrel of crude oil of the same grade is considered identical to another barrel of the same grade. ठीक है. अब हम नॉन फंजिबल टोकन के बारे में बात कर लेते हैं. तो इसमें क्या है, एन एफ टीज के की पॉइंट्स, डेफिनेशन क्या है. इट इज़ बेसिकली अ डिजिटल फाइल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ डिजिटल फाइल विच इज स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो कुछ भी पिक्चर रहता है एनएफटी, है ना. कोई भी पिक्चर रहता है उसको दे ट्रेड ऑन द इंटरनेट यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. उसको स्टोर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज़ करके करते हैं. यूज़ केस क्या है, इट कैन रिप्रेजेंट फिजिकल एसेट्स लाइक हाउस ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एक्सेट्रा. ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. दिस स्टेटमेंट वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन वन ऑफ द एग्जामिनेशंस, या 2023 या 22 में शायद पूछा था. आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. ठीक है. फिर है नॉन फंजिबल. NFTs cannot be divided or exchanged as their values differ based upon buyer preferences. ठीक है. So they are non fungible और उनका each unit is not considered to be having the same value. ठीक है. So they can neither be divided nor exchanged. ठीक है. एंड मार्केट ट्रेंड क्या है, देयर इज़ अ हाई डिमांड फॉर डिजिटल. देयर वॉज, अभी आजकल इतना नहीं है, बट ठीक है. There's a high demand for these digital assets and they are usually bought using Ethereum. So again, this is very important that for NFTs, Ethereum is primarily used. And how will you remember this? देखो NFT है ना. N को हम लोग NFT भी कर सकते हैं और N से फिर Ethereum को लिंक कर लेंगे. ठीक है. So this is only for learning purposes. Next है, we look at the examples of Ethereum. I'm sorry, examples of NFTs. So people का एक digital painting है that was sold for $70 million. So that is an example of NFT. Then we had Robot Sophia's NFT art, which was auctioned for over 6 lakh dollars. Then celebrities are also creating NFTs from posters and autographs. Now we'll be looking at the demand of money and liquidity preference theory. Okay, so in these notes, the I have written over here कि जो topics हैं, those will be in this burgundy color. The subtopics का जो heading रहेंगे, that will be in this color, coral color. And then जो subtopic है, that heading will be in green color. ठीक है. दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, सो इट इज़ ईजियर टू लर्न. जैसे ये मेन टॉपिक है, उसके सब टॉपिक्स, देन ये अगेन मेन है और उसके सब टॉपिक्स हैं करस्पॉन्डिंग. सो डिमांड ऑफ मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी. सो कीन्स ने दिया था ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, उसको देख लेते हैं हम लोग. अकॉर्डिंग टू हिम, पीपल प्रेफर टू होल्ड कैश फॉर प्राइमरीली 3 रीजन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांजैक्शन मोटिव रहता है सब लोगों का कि दे होप टू बाय डेली एसेंशियल आइटम्स विद द हेल्प ऑफ मनी. तो ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब ट्रांजैक्शन करने के लिए कैश से हम लोग डे टू डे ट्रांजैक्शंस और चीज़ें खरीद सकते हैं. सेकंड है प्रिकॉशनरी मोटिव. सो टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इमरजेंसीज. ठीक है. तो उसमें वही, it is self-explanatory. For emergencies, we have precautionary motive. Precaution against emergency. Next है speculative motive. Speculate मतलब कुछ guess करना. ठीक है. तो speculative motive कहाँ पे आएगा? In order to invest money into other assets. जैसे कि कैश दे के हमने we bought gold और we bought a piece of land. सो वी आर होपिंग कि जो गोल्ड का प्राइस है वो बाद में बढ़ जाएगा. सो दैट इज़ द स्पेकुलेशन विच वी आर डूइंग. ठीक है. तो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए भी पीपल प्रेफर टू होल्ड मनी. सो अकॉर्डिंग टू कीन्स,
Keynes's liquidity preference theory, there are primarily three reasons: transaction, precautionary, as well as speculative motive for which people tend to hold money. ठीक है, और एक इंटरेस्ट रेट इफेक्ट के बारे में भी उन्होंने बताया था, दैट व्हेन बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, पीपल डिपॉजिट मोर मनी इंस्टेड ऑफ होल्डिंग कैश. ठीक है, तो अगर बैंक डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई, सो पीपल विल बी डिपॉजिटिंग दैट मनी इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इट एज कैश. ठीक है, बिकॉज दैट विल बी बेनिफिशियल ना, ओवरऑल ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इफ़ यू गेट इंटरेस्ट ऑन द मनी दैट यू हैव. ठीक है, तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? कीन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी. सबसे पहले तो दे माइट, वैसे तो ऐसे theoretical questions are not generally asked, but still it may be asked, so we'll just learn it this way कि liquidity preference theory है ना, liquidity preference theory तो कीन्स की है. की देखो, की से आप इसको लिंक कर लो, की मतलब चाबी. ठीक है, सो in case a key gets jammed, so you'll pour some liquid, that is oil, into the lock. ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि कोई लॉक है वो जैम हो गया है, तो उसमें की अच्छे से काम नहीं कर रहा है. सो इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क, आप कोई लिक्विड मतलब कि कोई ऑयल डालोगे लॉक में ताकि इट वर्क स्मूथली. ठीक है, तो वैसे करके यू कैन लर्न कि कीन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी था. ठीक है, नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है टोटल डिमांड ऑफ मनी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द टोटल डिमांड ऑफ मनी. तो टोटल डिमांड ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ट्रांजैक्शन डिमांड एज वेल एज स्पेक्यूलेटिव डिमांड पे. वी जस्ट रेड के ट्रांजैक्शन क्या होता है और स्पेक्यूलेटिव क्या होता है, यहाँ पे पढ़ा था. सो उसी की बात हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स. सो लिक्विडिटी एंड क्लास, वही उसमें आएगा लिक्विडिटी एंड क्लासिफिकेशन, एसेट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि द ईज ऑफ क्रिएटिंग एन एसेट, कन्वर्टिंग एन एसेट इनटू कैश. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एसेट है, जैसे सपोज आई हैव सम लैंड, सो हाउ इजी इज इट टू कन्वर्ट दिस लैंड इनटू कैश. ठीक है, तो इट इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट. अगर लैंड देखेंगे हम लोग, तो हम लोगों को वील फर्स्ट हैव टू लुक फॉर someone who's willing to buy that piece of land. ठीक है, उस हिसाब से दिस विल टेक टाइम, सो इट इज़ नॉट वेरी लिक्विड. वेराज अगर हम लोग कैश को खुद ही देखें, सो कैश इटसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सट्रीमली लिक्विड एसेट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे गोल्ड है, अगेन गोल्ड के लिए देर आर लेसर फैक्टर्स एट प्ले, देयरफॉर इट इज़ मोर लिक्विड एज कम्पेयर टू लैंड. मतलब गोल्ड को ईजिली कोई भी खरीद सकता है ना, and it is easier to convert it into cash, that is why gold is more liquid. ठीक है, so ease of converting an asset into cash is known as the liquidity, and cash is considered to be the most liquid asset. फिर हाईली लिक्विड एसेट्स के एग्जांपल्स क्या हैं? गोल्ड, डिमांड डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, शेयर्स और बॉन्ड्स ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज. ठीक है, और रिलेटिवली इलिक्विड एसेट्स कौन से होंगे? रियल एस्टेट, जैसे मैंने बताया ना आपको, घर अगर किसी ने खरीदा हुआ है, so it is difficult to sell it because first of all you will have to find certain customers who are willing to buy it, और उसके ऊपर से फिर taxes वगैरह, so this is relatively illiquid. Then paintings, again you'll have to find customers and वो बहुत टाइम लग जाता है उस चीज़ों में, so it is difficult to convert it into cash. Sculptures etc. Then फिर इसका दिया liquidity injection क्या होता है? When RBI buys government securities, treasury bills और financial assets from banks and NBFCs to provide them with cash. इसका मतलब यही है कि so for example some situation comes wherein RBI feels के इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में पैसे कम है, कैश कम है, so RBI will have to put money into the economy. ठीक है, वो इकोनॉमी में पैसे डालने की कोशिश करेंगे.
ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज लिक्विडिटी इंजेक्शन। ठीक है, तो आरबीआई पुटिंग मनी इनटू द इकोनॉमी, सो हाउ विल दे पुट मनी इनटू द इकोनॉमी? बाय बाइंग गवर्नमेंट, बाइंग नहीं, बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रुको रुको, बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब इफ दे बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी देन दे विल बी गिविंग कैश टू द इकोनॉमी, है ना। सो बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिर अगर ट्रेजरी बिल्स बाय कर लें वो, तो क्या होगा, इसके पास ट्रेजरी बिल आ जाएगा और इनके पास कैश आ जाएगा इकोनॉमी के पास। ठीक है, सो दैट इज हाउ दे विल बी इंजेक्टिंग कैश इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, now we'll be looking at the deposit types. So basically ये जो deposit types टॉपिक है इसमें सब टॉपिक्स क्या क्या है डिपॉजिट टाइप्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिपॉजिट्स इन ऑपरेटिव एंड अनक्लेम्ड अकाउंट्स। पहले तो ये डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स के बारे में देख लेंगे हम लोग, एंड आफ्टर दैट वी लुक एट इन ऑपरेटिव एज वेल एज अनक्लेम्ड अकाउंट्स। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव उद्गम पोर्टल के बारे में थोड़ा सा, देन फुल रिजर्व बैंकिंग वर्सेस फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बैंक लाइबिलिटीज। ठीक है, सो वी हैव टाइम लाइबिलिटीज एज वेल एज डिमांड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो और टोटल कितना, डिमांड लाइबिलिटीज प्लस टाइम लाइबिलिटीज विल गिव अस द बैंक लाइबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, समथिंग विच अ बैंक ओज, मतलब मनी ओड बाय द बैंक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं गई एंड आई पुट माई मनी इन द सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट में मैंने जाके अपने पैसे डाल दिया, तो क्या होगा, दैट विल बिकम अ डिमांड लायबिलिटी। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि मैंने अपना पैसा डाला है, देयरफॉर द बैंक हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स मी टू रिटर्न दैट मनी टू मी। ठीक है, क्योंकि मेरा पैसा है वो, देयरफॉर जो भी मेरे सेविंग्स अकाउंट में पैसा होगा बैंक में, दैट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर द बैंक एंड एन एसेट फॉर मी। ठीक है, तो लायबिलिटी मतलब जो चीज़ उनको वापस करनी है मेरे को। ठीक है, और मेरे लिए एसेट हो जाएगा क्योंकि मेरा है वो चीज़। ठीक है, तो ये सपोज मैं हूँ, मैंने पैसे दे दिया बैंक में, बैंक में ये बैंक अकाउंट है मेरा। ठीक है, इसमें पैसे डाला है मैंने, सो फॉर दैट बैंक दैट बिकम्स अ लायबिलिटी एंड इट बिकम्स एन एसेट फॉर मी। लायबिलिटी मतलब दे हैव टू रिटर्न इट टू मी एट अ लेटर डेट। ठीक है, अब इसके दो टाइप्स हैं, टाइम लायबिलिटी और डिमांड लायबिलिटी। सो सपोज ये जो मैंने पैसे दिए हैं इस अकाउंट में डाले हैं, उसको मैंने फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए डाल दिया कि मैं 2 साल बाद आई विल रिमूव दैट मनी, उससे पहले आई वोंट बी रिक्वायरिंग दिस मनी, तो मैंने ऐसे बोल दिया बैंक को कि 2 साल बाद ही चाहिए मेरे को। ठीक है, सो दैट विल बी नोन एज अ टाइम लायबिलिटी, मतलब फिक्स टाइम के लिए इट हैज़ बीन पुट इन द बैंक। सिमिलरली मैंने एक दूसरा अकाउंट बनाया कम पैसों का, उसमें मैंने थोड़े से पैसे डाले हैं एंड आई टेल द बैंक दैट आई रिमूव दिस मनी वेन एवर आई वॉन्ट इट। ठीक है, तो मेरे को डेली यूज़ के लिए बीच बीच में पैसा चाहिए रहता है, सो आई कीप विड्रॉइंग मनी फ्रॉम दिस वन। सो दिस विल बी नोन एज डिमांड लायबिलिटी, मतलब मेरे डिमांड पे उसमें से मैं पैसा निकाल सकती हूँ। ठीक है, सो ये बड़ा वाला जो है पिंक वाला, दैट विल बी टाइम लायबिलिटी, एंड जो नीचे वाला है ऑरेंज वन, दैट विल बी डिमांड लायबिलिटी। ठीक है, तो वही दिया है यहाँ पे, टाइम लायबिलिटीज़ के क्या क्या टाइप्स है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ टाइम लायबिलिटीज़।
So bank is not legally required to pay before the maturity date, but however it may allow withdrawal with penalty. ठीक है, तो अगर आपने एफडी बनाया है, जैसे 2 लाख रुपीस का बनाया है 2 साल के लिए, सो आइडियली द बैंक हैज़ नो फॉर्मल लायबिलिटी टू रिटर्न इट टू यू बिफोर 2 years, ठीक है। हाउएवर उनको, मतलब अगर आपको चाहिए कि चाहिए अभी तो पैसे, तो आप यू कैन गिव सम पेनल्टी एंड रिमूव इट बिफोर द टाइम पीरियड एंड्स, ठीक है। तो फॉर्मली दे आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू रिटर्न द मनी टू यू बिफोर 2 years, बिफोर द टाइम पीरियड एंड्स, ठीक है। एंड जो देयरफॉर जो टाइम लायबिलिटीज होते हैं दे आर लेस लिक्विड, बिकॉज इनको कैश में करना, कन्वर्ट करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है। पूरा एफडी तुड़वाना पड़ेगा, दैट टू यू हैव टू पे सम पेनल्टी, सो दैट इज़ व्हाई दे आर लेस लिक्विड। हाउएवर दे ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट्स। व्हाई डू दे ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट्स? बिकॉज ये जो पिंक वाला पैसा पड़ा है बैंक के पास, वो क्या करेगा, इसको जाके इन्वेस्ट कर देगा कहीं बढ़िया जगह पे, बिकॉज उसको पता है कि 2 साल तक, मतलब जो भी टाइम पीरियड है, सपोज 2 years, 2 years तक तो द पर्सन में विल नॉट बी आस्किंग फॉर दिस मनी बैक, है ना। तो वो क्या करेंगे, इसको जाके किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर लेंगे, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह में दे विल इन्वेस्ट दिस मनी, एंड दैट इज़ वाई दे विल बी प्रोवाइडिंग अस बेटर इंटरेस्ट रेट्स ऑन टाइम लायबिलिटीज़, बिकॉज देयर इज़ अ सर्टेनिटी कि इतना साल बाद देना है, सो स्टेबल है, सो दिस कैन बी इन्वेस्टेड इन अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। वेराज जो डिमांड लायबिलिटीज़ हैं, दे कैन नॉट बी, मतलब उसका तो कुछ पता नहीं है कि कब मांग लेंगे पैसे, सो दैट इज़ वाई दे कैन नॉट बी stuck in big investments, so that is why a lower interest rate is offered on डिमांड लायबिलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये दिया है डिमांड लायबिलिटीज़। एग्जांपल्स क्या हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। एंड दे आर हाईली लिक्विड एंड देयरफॉर मनी कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। सो मैंने एज आई टोल्ड यू दे हैव लोअर इंटरेस्ट रेट्स एज कम्पेयर टू टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। अभी एग्ज़ाम में सवाल क्या आ सकता है इसमें से, टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब ये सब तो पता ही होगा आपको, बट गुड क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इज, जैसे ये वाला नेम है, दिस इज़ नॉट नोन टू अस, ज़्यादा वी डू नॉट नो अबाउट दिस, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ठीक है। सो दिस दे माइट आस्क कि विच डज दिस, मतलब विच हेडिंग डज दिस फॉल अंडर, तो टाइम डिपॉजिट है कि डिमांड डिपॉजिट है, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो लर्न दीज एग्जाम्पल्स प्रॉपरली। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स का तो हमें पता है टाइम लायबिलिटी है, बट स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आर ऑल्सो टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली इन केस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, देखो करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट का तो हम लोगों को पता होता है कि दे आर डिमांड डिपॉजिट्स, इवन डिमांड ड्राफ्ट्स आर डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड लायबिलिटीज, ठीक है। However, overdue fixed deposits are also demand liabilities. This is extremely important, and unclaimed deposits are also डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट्स हैं, द वंस विच यू हैव नॉट इनकैश्ड, दैट विल फॉल अंडर डिमांड लायबिलिटीज, बिकॉज सिंस ओवरड्यू है, उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, तो कभी भी विड्रॉ कर सकता है वो आके, जो client है, they can come anytime and withdraw it, that is why it is kept under demand deposits, demand liabilities, ठीक है। सिमिलरली जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, तो कभी भी कोई ऐसे आ सकता है कि हाँ मेरा है, दे दो वापस, ठीक है। सो अगेन दैट इज ऑल्सो अंडर डिमांड लायबिलिटी। नेक्स्ट वी लुक एट इनऑपरेटिव वर्सेस अनक्लेम्ड अकाउंट्स। तो इनऑपरेटिव अकाउंट कौन सा होता है, इट इज़ एन अकाउंट वेयर इन नो ट्रांजैक्शन हैज़ बीन मेड बाय द डिपॉजिटर फॉर मोर देन 2 years, सो दिस टाइम पीरियड इज, यू नीड टू रिमेंबर दिस, कि इनऑपरेटिव अकाउंट में अगर 2 साल से ज़्यादा यू हैवंट यूज योर अकाउंट फॉर एनी ट्रांजैक्शन, देन योर अकाउंट विल बिकम इनऑपरेटिव।
देन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स क्या है? वो एज द नेम सजेस्ट, अगर आपका किसी बैंक में पैसे पड़ा है एंड यू हैव नॉट विड्रॉन इट और ट्रांजैक्टेड विद इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज एन अनक्लेम्ड डिपॉजिट, मतलब आप उसको क्लेम नहीं कर रहे हो, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, सो इट रेफर्स टू एनी सेविंग्स और करंट अकाउंट विच हैज बीन इनएक्टिव फॉर मोर देन 10 years, एंड सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट में 10 साल का है, एंड इवन फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट अगर आपने कोई बनाई थी एंड यू हैव नॉट क्लेम्ड इट फॉर नियरली 10 years, मतलब ओवर ड्यू डिपॉजिट हो गई वो, तो अगेन दैट विल ऑल्सो बी अ unclaimed deposit. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर द ईयर हियर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू 2023 डेटा, नियरली 1 lakh crore rupees are stuck in inoperative accounts, and more than 42,000 crore rupees are present as unclaimed deposits. ठीक है, सो यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अरे यार इतना सारा पैसा इज जस्ट लाइंग ऐसे ही। ठीक है, इन बैंक्स। सो रूल्स क्या है? बैंक्स कैन नॉट चार्ज पेनल्टी ऑन सच अकाउंट्स, and savings account must continue earning interest. So these two statements are still important. First of all, they cannot charge penalties on such accounts. Secondly, the savings account will continue earning interest. So ठीक है, do remember these two statements. Apart from this, इसमें important क्या है? You just have to remember the time period. कि अगर 2 साल से ज़्यादा का अकाउंट है, सो आप ऐसे ही सोच लीजिए कि लर्न करने के लिए 2 साल, 2 साल में क्या हो जाएगा आपकी एमए हो जाती है। एमए मतलब मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट, है ना? मास्टर्स या एमटेक भी कर सकते हैं 2 साल में। ठीक है, तो अगर आप एमए कर रहे हैं और आपने कोई अकाउंट खोला और उसको यू हैवंट यूज इट फॉर मतलब you did not use it for the entire period of your course, then that will become inoperative. ठीक है, this is just some link which I have tried to make in order to help you learn. ठीक है, then एम ए या एम टेक कर रहे हैं और ऐसे अकाउंट बना के शुरू शुरू में आपने अकाउंट बना लिया और उसके बाद पूरा जब कोर्स ख़त्म हुआ उसके बाद में फिर ध्यान आया, तो दैट अकाउंट विल बिकम इनऑपरेटिव। फिर अनक्लेम्ड में क्या है? 10 साल। तो 10 साल आप ऐसे ही लर्न कर लो कि 10 साल से ज़्यादा इफ़ यू हैव नॉट क्लेम्ड इट, देन इट विल बिकम एन अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ठीक है, सो दिस 10 years इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द उद्गम पोर्टल, दैट रेफर्स टू अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, सो उद्गम पोर्टल और डीईए फंड के बारे में देख लेते हैं। सो एनी बैंक डिपॉजिट्स विच हैव बीन लेफ्ट अनक्लेम्ड फॉर 10+ years, they are transferred to the depositor education and awareness fund under आरबीआई। ठीक है, और ये जो बैंक डिपॉजिट्स हैं उसके बारे में समवन वांट्स इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अ पर्सन हैज़ सम बैंक डिपॉजिट और उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, so they can go to the उद्गम portal which again has been launched by RBI itself. ठीक है, so the purpose is to help beneficiaries search unclaimed deposits across multiple banks using आधार, पैन कार्ड, etc. तो ये मैं आपको I'll show you this thing via a diagram. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई भी पर्सन है, इनका एक अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट यूडी लिख लेते हैं। ठीक है, सो दिस अनक्लेम्ड डिपॉजिट विच हैज़ बीन अनक्लेम्ड फॉर मोर देन 10 years, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू आरबीआई's डिपॉजिटर एंड एजुकेशन अवेयरनेस फंड, डीईए फंड, उसमें डाल देंगे इसको। ठीक है, अब फिर बाद में इनका ऐसे नींद खुल गया और इनको लगा कि अरे कहाँ गए मेरे पैसे, सो ये क्या करेंगे? उद्गम पोर्टल पे जाएंगे। उद्गम पोर्टल वही आरबीआई का ही है, उस पे जाके दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस मनी, अनक्लेम्ड मनी उनका। ठीक है, तो ये है, इतना ही दिया है इसको। अभी नाउ वी विल ट्राई टू लर्न दीज फैक्ट्स। ठीक है,
तो उद्गम का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। हिंदी वर्ड उद्गम उद्गम का मतलब होता है ओरिजिन। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में पता करना है, ओरिजिन पता करना है कि कहाँ गए वो लोग, सो देन यू गो टू द उद्गम पोर्टल ऑफ आरबीआई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द फैक्ट दैट आरबीआई का खुद का पोर्टल है। सो इन द एग्जामिनेशन दे माइट गिव यू ऑप्शंस कि एनपीसीआई ऑपरेट करता है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑपरेट्स इट। सो ऑल ऑफ दोज ऑप्शंस विल बी रॉन्ग. The answer is RBI. RBI is the one who operates both the depositor and education awareness fund, depositor education awareness fund, as well as Ugam portal. Both of them are being controlled by RBI. ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे? देखो क्या है, डिपॉजिट्स के बारे में है। डिपॉजिट्स आर बैंक डिपॉजिट्स, है ना, बैंक डिपॉजिट्स के बारे में है। सो सबसे रेगुलेटर कौन है बैंक का? आरबीआई। सारे बैंक्स का मेन रेगुलेटर इज आरबीआई। ठीक है, सो अगर बहुत सारा पैसा कहीं पे इट रिमेन्स अनक्लेम्ड, सो नेचुरली इट विल गो टू द रेगुलेटर, रेगुलेटर या बॉस। ठीक है, उनके पास ही जाएगा सारा पैसा। सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। एंड इफ़ यू वांट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अगेन आरबीआई विल बी द वन प्रोवाइडिंग इट, बिकॉज उन्हीं के पास में है सारा पैसा अंडर डीईए। ठीक है, डीए फंड के अंदर। ठीक है, सो दिस विल बी इजी टू रिमेंबर। और डू रिमेंबर द टाइम पीरियड 10 years। ठीक है, तो 10 years से ज़्यादा इफ certain deposit remains unclaimed, it will go to RBI's Depositor Education and Awareness Fund. Next, we'll look at full reserve banking versus fractional reserve banking. So, isko we'll understand this via this table, comparison table. And you should first of all remember that India follows the fractional reserve banking framework. ठीक है, सो फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू यहाँ पे अलग से कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग एंड फुल रिजर्व बैंकिंग। दोनों का मीनिंग मैं समझा देती हूँ। इन लोगों का जो वर्ड है ना, जो नाम है, दैट इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो इसमें नाम क्या दिया है? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग एंड फुल रिजर्व बैंकिंग या फुल रिजर्व बैंकिंग। तो मतलब कि रिजर्व मतलब अलग से, टू कीप असाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, कीप असाइड समथिंग को रिजर्व बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम पूरा ही पैसा साइड में रख लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे फुल रिजर्व बैंकिंग। एंड इफ वी put aside only a small portion, कोई fraction of that money is put aside, that will be known as fractional reserve banking। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सो फॉर एग्जाम्पल समवन गिव्स अ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट उन्होंने किसी सेविंग्स बैंक अकाउंट उन्होंने अपना खोला एंड दे पुट सम मनी हियर। नाउ मनी ऐसे आर से दिखाते हैं, रुपी। ठीक है, उन्होंने इसमें पैसे डाले अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में, इस पर्सन ने। सो नाउ दिस इंटायर मनी, अगर ये पूरा मनी हम लोग, पूरा तो नहीं, इफ हाँ, अगर इफ द इंटायर मनी इज केप्ट असाइड, मतलब कि पूरे बैंक में अलग से इनका पैसा रख दिया गया एंड दिस मनी इज नॉट फर्दर गिवन टू सर्टन अदर, आगे इसको सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं अगर इस पैसे को, या तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया इस मनी का, या अगर इसको आगे किसी और को लेंड नहीं कर रहे हैं, देन दैट इज नोन एज फुल रिजर्व बैंकिंग। मतलब कि द इंटायर मनी हैज़ बीन केप्ट एज रिजर्व। ठीक है, वेराज अगर इसी पर्सन ने क्या करा, इसी पर्सन ने अगेन ही ओपन द सेविंग्स बैंक अकाउंट, है ना, एंड पुट सम मनी इन इट। हाउएवर if a portion of this money is kept, मतलब suppose half of the money has been kept by the bank, है ना, and the other half of that money has been lended to certain other person, ये लोन मांगने आया था, इसको दे दिया। ठीक है, that is known as fractional reserve banking। That is a portion of the money which was deposited as a demand deposit, it is kept as a reserve and the other portion is further circulated in the economy। ठीक है, दिस इज अ
कंसेप्ट ऑफ फुल रिजर्व बैंकिंग एंड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अभी इसके बारे में वील जस्ट रीड यहाँ पे थोड़ा सा। तो इसमें क्या दिया है, वो क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स के फॉर्मेट हैज़ बीन explained. So, can the banker give money from deposits as loans? So, no. In full reserve banking, the entire amount is kept as reserve और उसको आगे loans में नहीं करते circulate. Whereas fractional reserve banking में yes, a portion of that money can be given away as loans. Then क्या दिया, can the banker give money from time deposits? देखो, this is very important, the fact that देखो जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो फुल रिजर्व बैंकिंग में द इंटायर थिंग विल बी केप्ट असाइड, वेयर एज टाइम डिपॉजिट्स कैन बी सर्कुलेटेड। ठीक है, तो ये दिस होल थिंग स्टैंड्स ट्रू ओनली फॉर डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, नॉट फॉर टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैन द बैंक गिव मनी फ्रॉम टाइम डिपॉजिट्स एज लोन्स? येस, ही कैन गिव, एंड इवन फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में ऑल्सो दे कैन सर्कुलेट दैट मनी। सो नेक्स्ट है बैंकर्स वल्नरेबिलिटी टू सडन और पैनिक विड्रॉल्स बाय क्लाइंट्स विच आर नोन एज बैंक रन्स। तो अगर बैंक रन हुआ, सब लोग सम सिचुएशन सम लाइक कोई भी जैसे अभी चल रहा है वॉर टाइप सिचुएशन अगर आ गई बाय चांस, सो व्हाट विल द पीपल डू, दे विल फियर अ कोलैप्स ऑफ द इंटायर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, और फिर वो जाके पैसा निकाल देंगे अपना सारा। ठीक है, सो इफ एवरीवन स्टार्ट्स डूइंग दैट देन द इंटायर बैंकिंग सिस्टम माइट कोलैप्स और वो ये पूरा एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, तो however if there's a full reserve banking system in place, then that entire amount which the people may have given as demand deposits, that will be kept as reserve। ठीक है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दे विल बी हैविंग मनी टू रिटर्न द कस्टमर्स। ठीक है, सो देयर विल बी अ लेस impact of certain bank run situations on full reserve banking। whereas अगर fractional reserve banking है उसमें फिर सब लोग पैसा मांगने आ गए और किसी को लोन दिया हुआ रहेगा वो वाला पैसा, सो इट विल बिकम अ वेरी टफ सिचुएशन टू मैनेज। ठीक है, तो काफ़ी उसमें देयर विल बी अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बैंकर्स एबिलिटी टू हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फुल रिजर्व बैंकिंग में सिंस द मनी इज़ नॉट बीइंग सर्कुलेटेड, ठीक है, नॉट सर्कुलेटेड, देयरफॉर वेरी लेस एबिलिटी टू हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ। whereas in case of fractional reserve banking, still that money will help in economic growth। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। सो दिस इज़ द मेजर टॉपिक, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, ये कॉल मनी, नोटिस मनी और ये सारे दीज टॉपिक्स आर मेंशन्ड हियर। ठीक है, सो नाउ वी लुक एट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। So first of all we look at the definition and the significance। So money supply का definition क्या है, it is the total amount of money which is available in the economy at a given time। So this is a very simple definition। money supply मतलब total amount of money which is available in the economy at a given time। और significance क्या है, it affects inflation and also it influences interest rates and on deposits and loans as well। ठीक है, तो यही है, इन्फ्लेशन भी अफेक्ट होगा और इंटरेस्ट रेट्स। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस वी आर रीडिंग दिस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, तो ठीक है, नाउ वी विल बी लुकिंग एट द टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई। सो वो M0, M1, M2, M3 और M4, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई। M0 रेफर्स टू द रिजर्व मनी। ठीक है, तो रिजर्व मनी वो होता है जो भी करेंसी इन सर्कुलेशन है ना, विच द RBI ओज एज अ लाइबिलिटी। RBI इज़ लाइबिलिटी होती है ये RBI की, एंड इट रेफर्स टू द इंटायर अमाउंट ऑफ करेंसी विच इज़ इन सर्कुलेशन। ठीक है, उसको रिजर्व मनी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नैरो मनी विच रेफर्स टू M1। फिर नैरो मनी के साथ में है M2 रहेगा, नैरो मनी प्लस सेविंग्स इन पोस्ट ऑफिस। आफ्टर दैट वी हैव M3 विच स्टैंड्स फॉर ब्रॉड मनी। ठीक है,
एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर. इसके बारे में वी लोग नीचे जाके वील अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली. ब्रॉड मनी रहेगा, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर. देन वी हैव ब्रॉड मनी प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स. ठीक है, तो इसमें बस आपको इस पूरे में आपको बस ये लर्न करना है. In this portion, you need to remember that M0 stands for reserve money, wherein the reserve money is the total currency in circulation, and along with that also the bank reserves held with the central bank. तो पूरा जो भी करेंसी है ना, पूरा पैसा है, that is the reserve money. ठीक है, तो इसमें ऐड कर लो आप लोग reserves held with the central bank. ठीक है, नेक्स्ट अभी देख लेते हैं. वी लुक एट द मीनिंग्स ऑफ दीज नैरो मनी, ब्रॉड मनी, एवरीथिंग. सो नैरो मनी में क्या आएगा, एक तो करेंसी विद पब्लिक, CU, करेंसी विद पब्लिक आ जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट इट विल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, तो नैरो मनी दैट इज़ M1, इट रेफर्स टू करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स. तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग. नैरो मनी, नैरो मतलब पतला है ना, पतला मतलब नैरो जिसकी विड्थ कम हो, है ना. और ब्रॉड होगा जिसका विड्थ ज़्यादा हो. ठीक है, तो नैरो मतलब कम हो गया ना. और अगर आप देखेंगे तो डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं दे यूजुअली हैव लेसर अमाउंट ऑफ मनी एज़ कम्पेयर टू टाइम डिपॉजिट्स. ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं कि नैरो मनी किसको कहते हैं और ब्रॉड मनी किसको कहते हैं. सो इन ऑर्डर टू लर्न दिस आई हैव कम अप विद द ट्रिक. तो जिसे नैरो मनी होता है उसमें कम कम पैसे रहते हैं. कम पैसे कहाँ पे रहते हैं आपके, डिमांड डिपॉजिट्स में. डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट्स वगैरह में पीपल कीप लेस अमाउंट ऑफ मनी एज़ कम्पेयर टू द मनी विच इज़ केप्ट इन टाइम डिपॉजिट्स. ठीक है, FD वगैरह में ज़्यादा पैसे रखते हैं ना, तो उसको हम लोग ब्रॉड मनी में डाल देंगे. ब्रॉड मतलब ज़्यादा, मतलब वाइड मतलब ज़्यादा से आप कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स. So M1 will be narrow money. Narrow money will have demand deposits and currency with public. Similarly M2 क्या रहेगा, वो भी narrow money है but it will also be having ये demand deposits in post office savings bank. ठीक है, फिर है M3. M3 में रहेगा, M3 is broad money. Broad money as I told you earlier, broad money will be having larger amount of money, so it consists of both demand deposits as well as time deposits. सॉरी, ये तो करेंसी विद पब्लिक तो हर में रहेगा, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स रहेगा. ठीक है, एंड देन वी हैव ब्रॉड मनी विद पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, तो उसमें चारों में टिक रहेगा. ठीक है, नाउ वी लुक एट द लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मतलब कि द एबिलिटी टू क्विकली कन्वर्ट अ गिवन एसेट इनटू कैश. ठीक है, तो अभी देखो जो करेंसी विद पब्लिक है वो तो लिक्विड है, दैट इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट विच इज़ प्रेजेंट. देन है डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स में भी इट इज़ वेरी इजी टू विड्रॉ, है ना, काफ़ी आराम से विड्रॉ हो जाता है एंड इट कैन बी यूज्ड ईजिली. ठीक है, सो दैट दिस column that is narrow money will be having the highest amount of liquidity. Then after that we have narrow money with post office savings banks. ठीक है, तो उसमें there will be relatively lower liquidity because जो सेविंग्स अकाउंट रहते हैं पोस्ट ऑफिस के, दे आर I do not know the exact reason but I think they are a bit difficult to operate, so it is not as liquid as that of commercial banks. ठीक है,
देन है M3। M3 मतलब ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी में टाइम डिपॉजिट्स भी आ जाएंगे, है ना। सो दैट विल बी इवन फर्दर लोअर लिक्विड, मतलब और कम लिक्विडिटी रहेगी, बिकॉज टाइम डिपॉजिट्स को पूरा FD तोड़ना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू गिव अ पेनल्टी ऑल्सो, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी cumbersome process and that is why the liquidity is lesser. Similarly, if we in M4 broad money plus post office deposits, the liquidity is further lesser, ठीक है, बिकॉज ये टाइम डिपॉजिट्स को लिक्विडेट करना इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट, ठीक है। और क्वांटिटी QTY वो एक क्वांटिटी दिया है, सो नेचुरली जो डिमांड डिपॉजिट्स है उसमें कम पैसा रखा होगा लोगों ने, एंड जो टाइम डिपॉजिट्स वाला पूरा ब्रॉड मनी है उसमें देयर विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। एंड डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बट M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ठीक है। सो ये आपको वैसे भी आ ही जाएगा, दिस इज़ ईजी। If you have understood the meaning of these, you will be able to do this. And this is a trick. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नैरो मनी, नैरो मतलब कम, पतला या कम, तो कम क्या रहता है हमारा, डिमांड डिपॉजिट्स कम रहते हैं, और ब्रॉड मनी मतलब ब्रॉड, ज़्यादा ज़्यादा विल बी हैविंग टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी लुक एट द की इनसाइट्स। M3 is considered, M3 मतलब क्या हो गया, ब्रॉड मनी। सो M3 is considered to be the primary focus of RBI's monetary policy, ठीक है। सो उसका नाम ही ब्रॉड मनी है, मतलब सबसे काफ़ी ज़्यादा पैसे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ यूज्ड फॉर चेंजिंग या जो भी टू मेक चेंजेस टू द मॉनेटरी पॉलिसी। M3 पे फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। M1 और M2 वही ब्रॉड मनी है, और M3 M4 सॉरी नैरो मनी है, और M3 M4 ब्रॉड मनी है, वो वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट ऑलरेडी। नेक्स्ट है कोरोना का इम्पैक्ट ऑन डिपॉजिट्स। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अभी, वैसे ही देख लो कि जब लॉकडाउन हुआ था, देन द डिपॉजिट्स फेल एज देयर वर अ लॉट ऑफ पैनिक विड्रॉल्स विच हैड टेकन प्लेस, ठीक है। आफ्टर द लॉकडाउन द डिपॉजिट्स इंक्रीज बिकॉज एवरीथिंग रिटर्न टू नॉर्मलसी, ठीक है। सो दिस इज़ फेयरली सिंपल। देन एक्सक्लूजन देख लेते हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट्स, दैट इज़ वंस बैंक डिपॉजिट इन अनदर आर नॉट काउंटेड इन द मनी सप्लाई। अगेन दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ऐसे वाले चीज़ों से बन जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं ना, इससे बन सकता है कि जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, कि जैसे SBI ने इसमें पंजाब नेशनल बैंक में अगर दे हैव मेड अ डिपॉजिट देयर, सो दैट इज़ नॉट काउंटेड इन द मनी सप्लाई। ये वाले मनी सप्लाई वाले जो पूरा पोर्शन है इसमें उसको आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। रीज़न क्या रहेगा इसका, बिकॉज इट विल ऑलरेडी बी काउंटेड, ठीक है। तो वो 2 बार काउंट ना हो जाए, इसलिए दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट काउंटेड इफ़ इट इज़ डिपॉजिटेड इन सम अदर अकाउंट। आपको समझ आ रहा है, जैसे मैंने क्या बोला, अगर किसी एक बैंक के पास में पैसे है, जैसे SBI के पास में पैसे हैं, और वो PNB बैंक में जाके इट डिपॉजिट्स दिस मनी। सो यहाँ पे पहले ही उसको ऐड कर दिया है हमने मनी सप्लाई में। अगर यहाँ वाले मनी को भी अगर हम ऐड करेंगे, देन इट विल बिकम रिपीट हो जाएगा पूरा हमारा कैलकुलेशन, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, दिस मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी एट्सेट्रा, ठीक है। तो दीज आर टर्म्स विच आर यूज टू रेफर टू इंटर बैंक लेंडिंग, ठीक है। तो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये सब अगर इंटर बैंक ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, लेंडिंग ऑपरेशंस, उनके लिए ये टर्म्स यूज़ करते हैं। कॉल मनी का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू अ लोन फॉर 1 डे, ठीक है, और उसको ओवरनाइट भी बोलते हैं। सो ओवरनाइट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब एक रात के लिए अगर पैसे लिए हैं, एक दिन के लिए, इफ़ यू
if one bank takes a loan from another, that is known as call money or overnight. Then notice money refers to the money which is taken as a loan from one bank to another bank for a period of 2 to 14 days. ठीक है, तो एक दिन का रहता है कॉल मनी और 2 to 14 डेज का रहेगा नोटिस मनी. नेक्स्ट रहेगा टर्म मनी. टर्म मनी है लोन फॉर मोर देन 14 डेज बट लेस देन 1 ईयर. ठीक है, and this is used when banks or NBFCs lend or borrow money among themselves for short term liquidity needs. ठीक है, so all these three are important and you need to remember the time periods for each. ठीक है, तो उसके लिए we make some trick. अभी देखो कॉल मनी, कॉल करने के लिए देखो कम पैसे लगते हैं, है ना, तो वो ऐसे आप लर्न कर लो कि कॉल वर्ड भी छोटा है काफ़ी. ठीक है, छोटा वर्ड है, देयरफॉर ओनली 1 डे के लिए रहेगा एंड वही ओवरनाइट भी बोलते हैं इसको. नेक्स्ट इज़ नोटिस मनी. सो नोटिस कब देते हैं हम लोग, देखो नोटिस और टर्म बाकी दो बचे हैं ना. टर्म मतलब थोड़ा ज़्यादा ही होगा फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, वेराज जो नोटिस रहेगा, तो नोटिस कब हम यूज़ करते हैं, यूजुअली शॉर्ट नोटिस. ठीक है, तो ऐसे करके लर्न कर लो कि नोटिस मनी विल बी द सेकेंड टाइप और उसका टाइम पीरियड रहेगा 2 to 14 डेज. और टर्म मनी विल बी फॉर लॉन्ग पीरियड्स के लिए जो लोन दिया है, दैट इज द क्वांटम ऑफ द टाइम पीरियड विल बी अप टू 1 ईयर. ठीक है, मोर देन 14 डेज बट लेस देन 1 ईयर. ठीक है, सो रिमेंबर दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. Next, we'll be looking at the money multiplier. So basically, money multiplier, it represents how much the money supply is generated from each rupee of monetary base, मतलब रिजर्व मनी. 1 रुपये अगर रिजर्व मनी है तो उससे M3 कितना जनरेट हो रहा है. ठीक है, दैट इज़ नोन एज मनी मल्टीप्लायर. So I have taken a screenshot from Mrinal sir's notes and put here. यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था उनके नोट्स में. देखो, जो आरबीआई का कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, CRR, we'll study about that later also, but still CRR जो होता है, it leads to fractional reserve banking and credit creation. ठीक है, तो इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था. फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि रिजर्व रख रहे हैं थोड़ा सा, दे आर पुटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी एज रिजर्व और बाकी का लोन दे रहे हैं. ठीक है, रिजर्व प्लस लोन. Whereas full reserve banking में आगे money is not circulated, instead the entire money which has been given in demand deposits is kept as reserve. ठीक है, so commercial banks अगर cash reserve ratio को if they observe the CRR, then they can then it leads to fractional reserve banking and therefore it creates a money multiplier effect. ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इलास्ट्रेशन है ये. सो फॉर एग्जाम्पल M0, दैट इज़ हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं इसको, है ना. हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी, अगर किसी कहीं पे 100 रुपीज़ है हमारे पास में, ठीक है, उसका हम लोग वी लुक एट हाउ M3 पे क्या उसका इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो सबसे पहले बैंक 1 के पास में कितने 100 रुपीज़ गए. ठीक है, उन्होंने क्या करा, उनका कैश रिजर्व रेशियो सपोज 10% है, 10% रिजर्व रखने को बोला हुआ है RBI ने. देयरफॉर एसेट साइड में 100 रुपीज़ है, तो लोन कितना करेंगे वो लोग 90 रुपीज़, और 10% विल बी केप्ट एज रिजर्व, मतलब 10 रुपीज़ विल बी केप्ट एज द रिजर्व. ठीक है, सिमिलरली अभी बैंक 2 को 90 रुपीज़ मिल गए यहाँ से, है ना, तो ये लोग कितना, दे विल कीप 10% ऑफ 90 रुपीज़ एज द रिजर्व एंड लेंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट. ठीक है, तो 9 रुपीज़ विल बी केप्ट एज रिजर्व और 81 रुपीज़ को लोन कर देंगे. सिमिलरली नेक्स्ट बैंक 3 है, वो क्या है, 81 रुपीज़ में दैट विल बी केप्ट एज दी एसेट, और मतलब वो एसेट रहेगा, उसका
10% will be given kept as reserve, that is 8.1 रुपीज़, और बाकी का लोन कर देंगे. ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यूसली होता रहेगा. सो इफ़ वी कैलकुलेट द टोटल अमाउंट इस सब का, इट विल कम आउट टू बी 1000 रुपीज़. ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, पहले 100 रुपीज़ था M0, और ऐसे लोन कर करके फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की वजह से दी टोटल अमाउंट हैज़ बिकम 1000 रुपीज़. ठीक है, सो M3 कितना हो गया, 1000 रुपीज़ हो गया. सो मनी हैज़ इफेक्टिवली मल्टीप्लाइड. ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला क्या रहेगा मनी मल्टीप्लायर का, M3/M0. ठीक है, दैट इज 1000/100, दैट बिकम्स 10. हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी भी बोलते हैं इसको, एज यू माइट बी नोइंग. हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, रिजर्व मनी. ठीक है, तो ये उसी को दिया है. और यहाँ पे आर क्या है, दैट इज़ द रिजर्व, कितना रिजर्व रखा है हमने. तो कैश रिजर्व रेशो या इवन SLR भी होता है, बट दैट डज नॉट काउंट हियर. यहाँ पे बस CRR का ही काम वी कंसिडर. ठीक है, तो अगर मनी मल्टीप्लायर हमारा 10 है, सो अगर 10% रिजर्व है कहीं पे, देन जो मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/R, दैट इज 1/R कितना है 10%, सो 10/100. ठीक है, परसेंट को 10/100 लिखते हैं, 10/100. ठीक है, तो दिस बिकम्स 10 टाइम्स. सो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/R, दैट इज द रिजर्व रेशो. ठीक है, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. 1/R से हमको मनी मल्टीप्लायर मिल जाता है. ठीक है, जैसे कि 4% अगर रिजर्व रेशो है, तो उसका मनी मल्टीप्लायर शुड बी 1/R, दैट बिकम्स 1/4/100. तो कितना हो जाएगा 25. 25 टाइम्स मतलब कि मनी मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर हमारा कैश रिजर्व रेशियो 4 है. ठीक है, तो अगर मनी मल्टीप्लायर विल इम्प्रूव विद रिडक्शन इन CRR, अगर CRR कम करते जाएंगे हम लोग, मतलब ये अगर कम होगा तो ऑटोमेटिकली मनी मल्टीप्लायर विल इंक्रीज. ठीक है, सो दिस इज़ दी ओनली थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट हियर. इसका ऐसे ही सिग्निफिकेंस देख लो, वैसे दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. हायर मनी मल्टीप्लायर मतलब मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, एंड लोअर मनी मल्टीप्लायर मतलब लेस लिक्विडिटी. यू कैन सी दैट फ्रॉम हियर. जैसे यहाँ पे 10 टाइम्स अगर मनी मल्टीप्लायर है, मतलब कि 10 टाइम्स ज़्यादा मल्टीपल में M3 मिलेगा हमको, मतलब 10,000 रुपीज़ मिल जाएगा. सिमिलरली अगर 25 टाइम्स है तो इंटू 25 हो जाएगा, 100 इंटू 25 दैट बिकम्स 2500. तो मतलब और मनी मल्टीप्लायर हमें मिल जाएगा, एंड द मनी विल मल्टीप्लाई मोर, दैट मीन्स लिक्विडिटी विल इंक्रीज इन द मार्केट. ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया है. हायर मनी मल्टीप्लायर मतलब मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, एंड लोअर मनी मल्टीप्लायर मीन्स लेसर लिक्विडिटी इन द मार्केट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय RBI वाया कैश रिजर्व रेशो, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, है ना. इट रेगुलेट्स द फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग एंड क्रेडिट क्रिएशन, वही उसको ही रिपीट किया हुआ है. नाउ M0 का फॉर्मूला क्या है. ठीक है, M0 क्या होता है, रिजर्व मनी, एज यू माइट बी नोइंग. रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं. दैट रेफर्स टू ऑल ऑफ द मनी, मतलब जो भी लाइबिलिटी है ना RBI की, दैट इंटायर मनी इज M0. हाई पावर्ड भी बोलते हैं उसको. ठीक है, सो रिजर्व मनी, मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी, ये तीनों बोलते हैं. डू रिमेंबर दिस में भी आज ऐसे कुछ भी पूछ लेते हैं. ठीक है, for definition क्या, it refers to the total paper money plus coins in circulation पर plus RBI reserves और deposits. ठीक है, so it is also known as, ये तो हमने देख लिया. significance क्या, it forms the foundation of the money supply in the economy. ठीक है, now we look at money supply and the FRBM Act. FRBM stands for Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. So basically government, according to this act, कुछ conditions have been laid down. So according to those conditions, government must keep a fiscal deficit within a set % of the GDP. ठीक है, तो उससे ज़्यादा उससे कम नहीं होना चाहिए हमारा फिस्कल डेफिसिट.
It should be within a specified percent of GDP. Secondly, direct borrowing from RBI is prohibited except in two cases. So RBI से डायरेक्ट बोरो नहीं कर सकते एक्सेप्ट वाया शॉर्ट टर्म वेज एंड मीन्स एडवांसेस या ड्यूरिंग वॉर, कोई भी जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है ना, इमरजेंसी सिचुएशंस है, उसमें यू कैन बोरो मनी, द गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, या शॉर्ट टर्म के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस करके एक प्रोविजन होता है, वाया दैट द गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर गवर्नमेंट वांट्स टू बाय मनी फ्रॉम आरबीआई, बाय नहीं मतलब बोरो, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस. इसको लर्न क्या कैसे करेंगे, वे टू बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई. ठीक है, क्या आएगा, वे से वेज एंड मीन्स एडवांसेस. ठीक है, ये हो गया. देन आरबीआई कैन बाय और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट वाया ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ठीक है, फिर नाउ वी लुक एट मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट. है ना, इसका मतलब क्या है, monetization of deficit is basically a phrase which is used to depict RBI printing currency for government loans. ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है देन आरबीआई विल स्टार्ट प्रिंटिंग करेंसी एंड दैट इज नोन एज मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट. सो आरबीआई कैन प्रिंट मोर करेंसी टू लेंड टू द गवर्नमेंट. ठीक है, हाउएवर द एफआरबीएम एक्ट रिस्ट्रिक्ट्स दिस, thus making it difficult. एंड डायरेक्ट बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इज अलाउड ओनली इन स्पेसिफिक केसेस, जैसे ऊपर बताया है कि या तो कोई एक्सटर्नल इमरजेंसी है, वॉर, डिजास्टर, ये सब, और वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू. ठीक है, सो बोरो तो नहीं कर सकते आरबीआई से, देर आर वेरी स्मॉल, मतलब देर इज अ लॉट ऑफ कंडीशन अराउंड व्हेन द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई. सो क्या करते हैं वो लोग, दे आस्क आरबीआई टू प्रिंट मोर करेंसी. ठीक है, तो और ज़्यादा करेंसी अगर प्रिंट करेंगे तो दैट कैन बी लेंट टू द गवर्नमेंट. ठीक है, दिस प्रोविजन इज नोन एज मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. आरबीआई विल प्रिंट मोर करेंसी और उससे लाइबिलिटी बढ़ती रहती है गवर्नमेंट की, एंड इट विल एक्ट एज अ लेंडिंग टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट है, ये वी हैव ऑलरेडी सीन दिस एनसीईआरटी में, ये फॉर्मूलाज दिया एंड वी हैव ऑलरेडी डन दिस. अभी ऊपर जो टेबल पढ़ा था ना उसमें M1 है करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, है ना. देन M2 क्या है, M2 इज M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स. तो M1 को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट नैरो मनी. ठीक है, हमने वी हैव ऑलरेडी रेड दिस नैरो मनी. देन नैरो मनी प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस. देन वी हैव ब्रॉड मनी, एंड देन ब्रॉड मनी प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन. सो करेंसी इन सर्कुलेशन बेसिकली मेजर्स द कैश यूज्ड एज पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टेड ऑफ डिजिटल मेथड्स. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, इट हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड, ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. फिर CIC growth has declined due to reduced precautionary cash demand post-COVID and more deposits in banks. Russia-Ukraine war led to a temporary increase in precautionary cash holdings, thus raising the CIC. So cash currency in circulation is basically referring to the cash which the people have. ठीक है, उसमें वो डिजिटल मेथड्स वो सब विल नॉट बी इंक्लूडेड. ठीक है, so इसका do remember this definition. CIC measures the cash used as payment instrument instead of digital methods. Next, we'll look at some miscellaneous topics which are left. So, one topic is velocity of money circulation. Definition of velocity of money circulation. It basically refers to the average number of times that that money changes hands in a given period. So, for example, 10 रुपए का नोट है. If you use it to buy a pen, then वो जो shopkeeper है, he might use the same note, currency note, to buy tea. ठीक है, और फिर और उसके बाद में वो जो टी वाला है, ही कैन यूज़ दैट सेम थिंग टू बाय बिस्किट्स और समथिंग.
ठीक है, सो दैट 10 रुपी नोट एक ही नोट है, बट इट इज़ परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ 20 रुपीज़ यहाँ पे, क्योंकि एक तो उसने पेन भी बाय बाय करा प्लस उसने टी भी बाय करा उस नोट में, करेंसी नोट में। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। ठीक है, तो जितने छोटे नोट्स होंगे, करेंसी नोट्स होंगे, छोटे इन द सेंस जिनका डिनोमिनेशन विल बी लेस, जैसे ₹10, ₹50, ये सब दे हैव हायर वेलोसिटी, whereas very high notes like ₹500 या ₹even 2000, इन सब का बहुत लो वेलोसिटी रहेगा, बिकॉज इतने का यूजुअली ट्रांजैक्शंस आर नॉट डन, मतलब डेली बेसिस पे होता तो है, जैसे 2000 का इतना ट्रांजैक्शंस होते ही नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा लोगों के वॉलेट्स में, है ना, दैट वोंट बी यूज्ड एज ऑफन। वेयर एज ये 10 रुपये 50 रुपये का, दे आर वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक है, सो रिमेंबर दिस कंसेप्ट, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। ठीक है, दी एग्जाम्पल गिवन हियर इज ऑल्सो नाइस। इब्न सर के नोट्स हैं ये, दे हैव बीन रीस्ट्रक्चर्ड थोड़ा सा। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी। तो क्या क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। डोंट लुक एट दिस नंबरिंग, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ऐसे ही है ये। हाँ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पीपल हैविंग हायर मनी वेलोसिटी एज दिस, क्या है, पुअर पीपल हैव हायर मनी वेलोसिटी एज दे स्पेंड मोर क्विकली दैन द रिच। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगेगा कि रिच पीपल विल बी द वंस हु विल बी हैविंग हायर मनी वेलोसिटी, बट इंस्टेड इट इज़ द पुअर पीपल हु हैव हायर मनी वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है बोरोइंग लेवल्स। देखो ऐसे होता क्या है, जो पुअर पॉपुलेशन होती है ना, उसमें ये इसने पेन खरीदा, ठीक है, इनके पास पेन आ गया एंड शॉपकीपर से उनको ₹10 दे दिए। ठीक है, इन शॉपकीपर ने ही बॉट टी फॉर ₹10। ठीक है, ये चाय खरीद ली इन्होंने एंड इस पर्सन को दे दिया पैसे। ठीक है, तो ये ₹10 हैज़ बीन यूज ट्वाइस। वेर एज अगर कोई रिच पर्सन है, ये ऐसे रिच पर्सन है, उनका क्या होगा, इनके पास ₹10 का, इवन इफ ही बॉट, मतलब जैसे ये नहीं, ये इन्होंने तो चलो पेन खरीद लिया, ठीक है, एंड सपोज दैट दिस पर्सन इज ऑल्सो रिच, जिससे द शॉपकीपर whom ही बॉट मनी द पेन फ्रॉम, इवन ही इज रिच। तो ये शॉपकीपर क्या करेगा, इनके पास ₹10 आ गया, ये अपने वॉलेट में रख लेगा। ठीक है, ये सपोज उनका वॉलेट है, उसमें भर के रख लिया पैसे। ठीक है, उसके बाद ही वोंट बी यूजिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम बिकॉज ही इज रिच, तो उनके पास और पैसा है फॉर यूजिंग इट। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर नोट माइट नॉट बी यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो had it been a poor person, the velocity of money circulation would have been very high, whereas for rich people, they put money into savings, investments, ये सब चीज़ों में डाल देते हैं, that is why the velocity of money circulation is lower। ठीक है, next है borrowing levels। so more borrowing leads to higher velocity। ठीक है, वो ऐसे ही पता चल रहा है आपको, जैसे इवन वो आपने अभी टेबल पढ़ा था फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का, उसमें भी दिखाया था कि हाउ ₹100 गॉट मल्टीप्लाइड अ नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज ऑफ द कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, तो वही हुआ कि मोर बोरिंग लीड्स टू हायर वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक बूम। इंक्रीज्ड रॉ मटेरियल परचेजेस एंड हायरिंग raises money velocity। so this is natural, अगर raw material purchases ज़्यादा होंगी, if the economy is growing, then automatically the money velocity will also be growing। ठीक है, so इसमें इस टॉपिक में इतना ही है। Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates। In the next video, we will be studying about the monetary policy। ठीक है, thank you।